गुड मॉर्निंग भव्य खंडेलवाल। भाई निखिल तेरे कोई रिलेशन में आई है? भाई खंडेलवाल। करूंगा इंडिया में भाई, हाउ वुड आई नो? No, please let Sarang speak today. Nikhil need a chill. अरे नो, कौन बोल रहा है? देखो मैं कौन नहीं बोल रहा है? बीमार अरे भी हूँ तो मेरा सब हम आज बैक निखिल से हम जो है सीखने आए हैं। तो टुडे निखिल विल गिव अस अ today सेशन कि वो क्या सीख कर आया जो today उसने अभी। today Sarang is gonna leak alphas. नहीं। बचा बचा के अपने पास छुपा छुपा के रखता है, देता किसी को नहीं है। क्या वो डायलॉग है ना 3 Idiots वाला? क्या नहीं, ये बताओ निखिल, have you downsized your size on Zero DT? मी Yeah. हाँ ड्रास्टिकली 20% पर रन कर रहा हूँ। दिस इज द And लोएस्ट उससे ऊपर नहीं रन and कर also सकता। what's the because even I am seeing because 2024 में ना मेरा एकदम मार्जिन कम से कम 50-60% यूटिलाइज हो जाता था। अब तो मेरा मार्जिन 20% 25% के ऊपर जाता ही नहीं। तो 20% पे and I'm trading straddles at like straight straddles because I want the money as well, right? मेरे को Yeah. वो I understand सब टीबीएस मार रहे हैं, सब टीबीएस ठोक रहे हैं। वो ठीक है, whatever, like that makes money, that is a good strategy, that makes money. The problem is उसका stop loss change करना। उसका stop loss कभी हाँ आते हैं, अरे 69% में वो है, मतलब असली जूस है, नहीं 35% में, that is the problem। एक stop loss रखो, चलाते जाओ, साल 2 साल पैसा बनेगा, 1 साल नहीं बनेगा, फिर साल 2 साल बनेगा नहीं बनेगा। I am just trading 20% पे straddles, like plain straddles, and I mean trying to delta hedge as less as possible, trying to manage as less as possible because I figured तो वही like charges, it's like a normal वो both side stop loss वाला straddle. no stop loss, nothing. I don't keep stop loss. No I don't stop. care. Like even if it Beautiful. goes 1,000 points, I have hedges. Like I'm ready on a random day. If it moves beyond my strike, I'm ready to give my stop. Right? अच्छा Because size बहुत छोटा है, right? मेरा साइज बहुत छोटा है और मैं straddle ट्रेड कर रहा है, तो नहीं साइज 100 छोटा है as in total छोटा है या you trade like account No. Basically, he's trading at a very small notional leverage. 20% अकाउंट का है, तो 20% अकाउंट का है, तो मान के चलो नोशनल में 1.5x है। and you also 1.5 notional leverage. you also carry that position या intraday सिर्फ? No, I'm not carrying that position. Intraday Not carry करेगा तो you- फिर overnight but- risk बहुत है। but you were doing positional right? I am doing positional, Yeah, you're doing. but it's not the 0 DT का position. It's like different. Okay. So But ये बता, like, are you noticing some increase in slippages post this STT? देखो मैंने कल चेक किया था, कल I forgot to post, कल चेक किया था, कल देवर रैंडम मूव्स जहाँ पे 1 से 2 रुपए के बिड आस्क बढ़े थे at random places. At random places there were points where you paid 2 rupees if you executed that point. उसके अलावा एंड ऑफ द डे में तो नहीं पड़ता, एंड ऑफ द डे तो वही 5 पैसा ही है। आई चेक बिकॉज क्या फर्क पड़ता है, अगर तुम 20 रुपए का प्रीमियम बेच रहे हो तो उस पर 5 रुपए पड़ेगा। सुबह पे थोड़ा ज्यादा है बट कांट से, अब वो 5 पैसा दिखेगा नहीं, बट आई हैव नाउ स्टार्टेड सीइंग रैंडम स्पाइक्स इन दी बिड आस्क। सो मतलब कि देयर आर लेस पार्टिसिपेंट्स ट्राइंग टू फिल योर ऑर्डर्स, तो मतलब probably people who fill your orders or people who are ready to take that risk when a certain amount of spike comes on, so they are less. तो कल 1-2 रुपए कई बार पहुंच गया था। I saw it, I forgot to post about it, but yeah. Anyway, I calculated STT and everything last month का, मेरा on an average it went to 0.3% with my 0DT, 0.3% STT and another 0.12% in ETT exchange. तो अप्रोक्सीमेटली 0.44% चार्जेस में दोनों मिला के दे रहा था, दिया इस मंथ में। कंसिडरेबली ऑल्सो दैट ये मंथ का प्रीमियम्स थोड़े बड़े थे, राइट? सो आई पेड मोर एज वेल, बट आई फिगर्ड आई पेड लाइक 0.4, so that is a lot. And that if I am paying that, obviously वो मेरे को slippages में, as in slippage नहीं मतलब fills में भी लगेगा। So I am of the thought now कि at least for the time being you either trade on the strangles, like far off strangles, and manage it well whatever you do, or you trade low size. That is सारंग क्या नहीं बोलेगा, फिर लोग बोलेंगे भाई कि सारंग से ज्ञान सुनना होता है, चुपचाप नहीं ज्ञान बट यार फार ऑफ स्ट्रैंगल्स में पैसा नहीं मिलेगा, लाइक एटलीस्ट लाइक नॉन जीरो डीटी जो है वहां पे। No, I feel that अगर far off strangles पे आप काम कर रहे हो ना, it will be like this, ठीक है?
आउट ऑफ 8 एक्सपायरीज 2 एक्सपायरी आपको लगेंगे, ठीक है, 2 एक्सपायरी आप ब्रेक इवन पे रहोगे, एंड देन 4 एक्सपायरी आप पैसे बनाओगे, वेर जस्ट आप देख सकते हैं कि बिकॉज हाउ आई लुक एट इट इज, लेट्स से अगर कोई बंदा, लेट्स से नाउ दैट द वॉलेटिलिटी हैज स्पाइक्ड अप, even if somebody wants to take the opposite bet, that is like people are selling straddles, right? Like if somebody wants to take the opposite bet, that is they go long on straddles, the market should not give them consistent money, where एक combined premium जो होता है, let's say 100 रुपए कॉल और 100 रुपए का पुट, तो एक कॉल 200 से ज्यादा नहीं जा सकता, because if it starts moving above that, the long straddle guys would make money. तो generally market उतना ही मूव करके वापस रिवर्ट करता है जहां पे मैक्सिमम लोगों का जो भीड़ इकट्ठा हो. So I feel that out of 8 expiries, there will be like 2 trendy expiries where the OTM options will spike as much as 5, 6, 7, 10 times, and there will be 4 expiries where the straddle का जो combined premium है सिर्फ उतने के आसपास आके market वापस आ जाता है, and those 4 expiries the stranglers would make good amount of money. Why? But Because yesterday also, Praful, I think 10x हुई थी OTM options, but it was yesterday was that. it was not a Yesterday was trending that kind of a day. trending expiry, right? It wasn't trending, but it was like volatile expiry with Stop loss hit करके overextension. Yeah. It was volatile expiry with overextension on both the sides. So I'm of the opinion that 4 expiry में पैसे बनेंगे. उस 4 expiry में जो पैसे बनता है, तो वो 4 expiry में जो पैसे बनता है, वो 2 expiry में जो लॉस लगा है उसको नलिफाई करने के लिए हो जाता है. तो नेट में 8 expiry में आपको जो पैसे बनता है नेट, वो 2 expiry से बन रहा है. And again, same 2.5-3%, depending upon like what kind of risk per day that you are running. अगर आप दिन का 2% रिस्क ले रहे हो तो महीने का 4% बनेगा. अगर आप दिन का 1% रिस्क ले रहे हो तो महीने का 2.5% बनेगा. महीने का 10% रिस्क लिया तो कितना होगा? 25 दिन का रिस्क 10% रिस्क लिया तो हाँ, तो 25% बनेगा. रिस्क ले इधर करोड़पति बनोगे या रोडपति बनोगे. लेवरेज नहीं है इतना, एटलीस्ट सेल उतना. हाँ, 10% रिस्क लेने का लेवरेज ही नहीं है ना. आई थिंक इवन विथ लेट्स से लाइक कोई बंदा फुल मार्जिन यूज करके हेजेस को भी पास में लेके हेजेस को भी फुल ये करके अगर एट द मनी भी ट्रेड करता है पूरा साइज अप करके, देन आई डोंट थिंक 2-2.5% से ऊपर दिन का रिस्क जाता भी नहीं मेरे हिसाब से. तो मैक्स रिस्क इज 3%. ये मैंने कभी कैलकुलेट नहीं किया. सो द मैक्स रिस्क वी कैन टेक इज 3%. मैक्स टू मैक्स उसे जाएगा ही नहीं. सी I'll tell you how. 10x का मैक्स लेवरेज मिलता है. स्प्रेड बना लो तो 10x का लेवरेज मिलता है. ऑन एन एवरेज जनरली आदमी जो स्ट्रैडल जो भी बेचा है 5 से 6 से 10 वेट मान के चलो, मैक्स टू मैक्स 10 वेट दूर बाई करता है, स्प्रेड बनाता है, राइट. 10 वेट तो गया निफ्टी पे 500 पॉइंट और सेंसेक्स में एक 1.3% वेट है. तो 2% में अगर आपने 0.5% कलेक्ट किया है और 10x बेचा है तो 4.5% का मैक्स वार है. इतना ही, उससे नहीं. 450 पॉइंट का मैक्स लॉस हो सकता है ना. 400 पॉइंट का मैक्स लॉस हो सकता है. 350 पॉइंट और 10x लूज किया तो 3500 पॉइंट लूज किया. 3500 पॉइंट इज निफ्टी में नो ज्यादा, सॉरी, यू कैन 10% ज्यादा है. 10% ज्यादा हो गया. 12% 15% पे वॉर बैठता है भाई. मैं देखता हूँ ना 15% पे वॉर बैठता है. It's 15% war. नहीं भाई. See, the thing is, यहाँ पे लेके ना people are still stuck with that war mentality. अभी तो war का कुछ issue नहीं है. I mean, WA war का issue चल रहा है, but VAR war का issue नहीं है, but ज्यादा variance का issue है कि कितना तुम variance handle कर सकते हो. Because like I am seeing, right, like तुम्हारा भी अगर MTM देखोगे तो 20% पे तुम चला रहे हो, and you can notice that कभी mark to market plus 0.5% रहता है. Within the next 5 minutes, it will go to minus 0.5%, and again it will come back. So yeah, it is correct. It is drastic. I sold 24,100 का straddle. It went to 24,200 something. Yeah. From there it went to 23. 22,950 गया था वो. Yeah, my variance moved from ऊपर से नीचे दाएं बाएं सब move कर गया था. Yeah. So again, वो जो from a truest risk premium sense, जो उस variance risk premium जो है, जो जितना variance उठाने को तैयार है उसको उतना ही तब से पैसा मिलेगा. So that's why I said at this point, because since I'm a discretionary trader and I try to get these micro edges from here and there, even I'm finding it very difficult to find those micro edges. ऐसा कुछ है ही नहीं, because मेरे को लगता है कि ओ यार 1 minute candle पे अगर मैं कुछ decision लेता हूँ तो I can be on the right side of the volatility, but no, the very next minute the market prints an exactly equal or even bigger sized opposite candle.
एक ग्रीन कैंडल फॉर्म करता है, सिंगल मिनट का बात कर रहा हूँ, इट्स नॉट इवन 5 मिनट्स 3 मिनट्स, 1 मिनट का कैंडल, बिकॉज नाउ माय ट्रेडिंग इज ऑन 1 मिनट, बिकॉज मार्केट इतना फास्ट एंड एफिशिएंट हो गया है। तो 1 मिनट पे एक बड़ा वाला ग्रीन कैंडल फॉर्म करता है, दैट टू अराउंड द रेजिस्टेंस लेवल, एंड उसके बाद इमीडिएटली उसका डबल साइज का या उसका बड़ा साइज का वो रेड कैंडल फॉर्म कर देता है। तो देयर इज एक्चुअली नो माइक्रो एजेस, बट रादर यू नो हाउ मच वेरिएंस वन इज विलिंग टू यू नो स्टमक। तो वहां पे बात आ रही है। तो अगर तुम But how overall, how was your month? मंथ इज अराउंड 2-2.5%। That's good. मतलब कि तब इतना रोने होने के बाद जो है 2-2.5% कमा रहे हो तो ठीक तो है। कल 0.2 0.3 का लॉस लग गया मेरे को कल। अरे छोड़ो यार। ना आई मीन आई एम सेइंग नो, आई एम सेइंग इट्स ओके, बट अगेन वो ऐसे काम क्यों करता है? क्यों? अगर इसने लॉस किया होता तो तोड़ रहा होता चीजें। भाई ऐसे हो गया ना, देखो सी अगेन एवरीबॉडी नोज दैट 2024 में माय वेरिएंस वाज हाई एंड वहां पे अपॉर्चुनिटी भी थी, लेवरेज भी थी, पैसे बनाने का पॉसिबिलिटी भी ज्यादा था। अब मैं दिन में 1% 1.5% का रिस्क लेके उतना वेरिएंस लेके मैं काम करने में कुछ मजा भी नहीं है, बिकॉज अगर एक दिन मान लो कि मैं 2% का लॉस ले लेता हूँ तो माई एवरेज मंथ इज समवेयर अराउंड 2.5-3%, तो देन इट डजंट मेक सेंस। सो लाइक आई हैव टू बी कंजर्वेटिव, एंड ऑल्सो मेरा जो महीना ठीक ठाक गया है बिकॉज लाइक आई वॉज एबल टू यू नो escape from the traps a couple of times, especially 2 o'clock के बाद ना बहुत ज्यादा लाइक वोलेटाइल हो जाता है मार्केट, दोनों तरफ मार देता है। तो इफ यू आर साइज्ड aptly at 2 o'clock and if you are able to navigate those chops, then you will be okay, because कल भी मैंने ऐसे किया था कि 3 o'clock तक मेरा मार्क टू मार्केट कॉस्ट टू कॉस्ट था, 3 o'clock के बाद मैंने थोड़ा प्रीमेच्योर एंट्री ले लिया एंड वहां पे फंस गया मैं। सो एक्चुअली लाइक यू नो there was a time where 90% of the money used to be made after 2 o'clock. Even Nikhil used to tell this, right? भाई 90% जो पैसे बनते हैं वो 2 बजे के बाद ही बनता है। And Nikhil actually made me go back to my trading logs, and his hypothesis was actually valid. Like मेरा जो पैसे बनता था, back I'm talking about back in 2022, 2023, and prior to that, maximum जो पैसे बनता था वो 2 बजे के बाद ही बनता। But now, but no, जनरली वो 2 की जगह पुश होके ऑलमोस्ट 250 हो गया है। no, भाई मैंने पूरा एनालिसिस करके रखा हूँ मैं, बिकॉज मेरा जो I also did that yesterday only. I did, like I was talking to a friend and we figured out कि करते हैं. So I did it on my book, I did it on TBS, I did it on just selling a straddle and then managing on spot everything. 3 point on an average 3 point बनता है. If you sell a straddle at 250, 3 point बन रहा है, और if you sell a straddle in the morning 7 बन रहा है, 7. So if you sell, I mean, not, yeah, obviously it's not 90% now, but generally the issue is क्योंकि you do not size in the morning that big, right? You size in the evening that big. So अगर तुम PNL का देखो, PNL का 40% आता है, but since you are sized almost 2 times 3 times, so वो 70-80% हो जाता है। मेरा बहुत कम हो गया। Like in fact over the last 3 months मेरा post 230 का जो मेरा gain था ना, like probably it's just 10% of my overall gain. It could be कि since it is choppy a bit and then you manage your positions really hard, right? Yeah. So you could be doing it. We do not manage positions really hard, like we let it run. So और भी मेरा कल क्या हुआ था, जो एक को डाउन मूव आई थी जिसमें स्पाइक आया था ना, that one spike was enough for me to मेरा एक्सपायरी निकल गया उसी में। like it was good for me। मेरा जो है जो पुट्स मेरी बॉट थी लोड कमाओ, that was enough। उसके बाद फिर तो चलता गया। हाँ, but overall April was a good month for selling options. Yeah, but the problem was this, निखिल, जैसे मैं पोजिशनल ट्रेडर हूँ तो या वो ओवरनाइट रिस्क का ना तो एक चल रहा था थोड़ा सा बैक ऑफ द माइंड ना, देयर वाज दिस मतलब काफ़ी अच्छे दिख रहे थे वॉल्स बेचने के लिए, बट इट वाज डिफिकल्ट फॉर मी। I think after the first week, जो पहला हफ्ते में जो 2000 पॉइंट अप मूव हुआ, लाइक वो 22,000 से 24,000 पहुंच गए थे, उसके बाद ओवरऑल वी हैव स्टेड एट दैट पॉइंट एंड बट वो वॉल हैज नॉट, वो वॉल 22 25 26 से गिर के 18 उसी टाइम पे पहले हफ्ते में ही हो गई। बट उसके बाद आई थिंक डिसेंट पैसा बना selling for me it has been subpar। I had a good, जबकि I was like quite a bit long wall। अच्छा, मतलब you can understand now if I did well in Feb and March, so that means I'm doing something like different than the usual short wall people। Nah, basically you are getting wide range days in Feb and March, no? Yeah। देखो आपका जो
डेबिट रेशियोज होता है, OTM ratios, like it thrives when the market gives more moves, like higher moves than what it is expected, especially near the fag end of the trading day. तो फेब एंड मार्च में फैग एंड ऑफ द ट्रेडिंग डे में काफी ज्यादा एक्सटेंडेड मूव्स आए एंड दैट वाज लाइक इन माय फेवर मोस्ट ऑफ द टाइम. बट अभी वही है ना, द विक्स इज बैक टू व्हाट इज इट, लाइक विक्स इज बैक टू 17 नाउ. Yeah. काफी गिर गया यस थोड़ा नैरो भी आ रहा है ना, तो out of 5 trading sessions, like you're getting what, 3 trading sessions the markets will stay within like 150 point range. तो आपका जो डेबिट का जो है वो बनता नहीं है, अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट दैट वो एक्सपायरी के आसपास अगर आप ATM टू OTM बनाते हो तो वहां पे थोड़ा पैसा बन जाता है. Yeah. but yeah I mean it But was today, it's a big day because of your exit poll आना है आज and also the Fed meeting and everything. So बाजार अभी तेज हो रहा है and the wars are also. बेंगल में क्या होने वाला है? So नहीं, I don't. Yeah, वो कहना कि उसके बाद they might increase the fuel price. They are waiting for the elections to be over. तो उसके बाद there can be big moves. यार I don't in the like market. लास्ट बिग मूव्स हमने सिर्फ वो देखे थे जो लोकसभा वाले मेजर इलेक्शन थे, उसके बाद से कुछ अभी देखा देखिए नहीं. चक्कर क्या ना निखिल, देयर इज जियोपॉलिटिक्स आल्सो गोइंग अराउंड ना, तो वो एक एडेड फ्यूल हो जाता है. तो हाँ मतलब आई थिंक इंटरनल रिस्क तो है ही नहीं कुछ इंटरनल, मतलब आई डोंट थिंक कि कोई फर्क पड़ता है किसी को अभी. इट्स ऑल ट्रम्प बेस्ड रिस्क, द मार्केट इज ट्रम्प बेस्ड रिस्क. वो आता है ही मूव यार, वो टैरिफ पे 4-5% अप मूव कर दिया था उसने यार. व्हाट इंटरनल रिस्क कैन मूव इंडियन मार्केट? उसके बाद तो उसने एक्चुअली में सबको डरा दिया ना कि इतना मूव भी आ सकता है. अभी आया नहीं था, खुल के नीचे आ गया था बाजार, बट ये हो सकता है कभी भी. मोदी जी फुल मेजॉरिटी से जीत जाए तब भी 5% अप मूव नहीं आएगा. ही लाइक ही जस्ट रैंडमली मूव्स मार्केट 5% अप इंडिया का, एंड मोर देन एनीथिंग. या मतलब so it's very I mean it's very like it shows you how much market doesn't care about macro global stuff but only care about money economics कि यार earnings पे फर्क नहीं पड़ना चाहिए. Tariffs is the thing that hurts the earnings of a company. The kamai of a company is hurt by tariffs, not much by war and anything else. That is why anytime a tariff comes, like it gaps up that big large. War वाले cases में क्या होता है, it did gap down a big, but it like keep drifting at it. It's not like it gap down 5% right? तो mostly tariffs instant attack करता है on your earnings कि यार अरे पहले लास्ट ईयर अर्निंग लेट्स से कंपनी 1000 करोड़ थी, उस पे 15% टैरिफ लगा दिया है, सीधा अर्निंग्स 15% कम हो गई, राइट? बिकॉज कॉस्ट तो कम होगी नहीं. तो सो या Let's take some questions now. एक बंदा continuously question पूछ रहा है, Isha, I think it might be a girl. I am an option buyer, a delta trader. I'm not making losses, but profits feel stagnant. I want to know, in your experience, there are intraday option buyers that make profits. Yeah, कई सारे. Like I know a few of them which make profits, but most of them who make profits are either of two types. Yeah, scalpers है, मतलब they trade very fast. They take a trade and close it like sub 1 minute. कई सारे. या फिर ऐसे लोग हैं जो ORB टाइप ट्रेड करते हैं, कि ओपन रेंज ब्रेकआउट काइंड ऑफ स्ट्रेटजी वेयर दे टेक अ ट्रेड एंड a lot of people. That's simple. That's a global trade. It's not something that one. It's a simple ORB, right? कि आप एक बार range breakout हुआ, आपने उठाया, let it expire, right? So there are multiple kind of trades that makes money, that doesn't make money. But problem with buying का है कि since buying में आपका unlimited पैसा बन सकता है. आपने 10, 15, 20, 40 रुपए का premium buy किया, you can make 400 points as well. So your profitability, like chances of making money, is very low. Like it is not like हम जैसे प्रफुल्ल कैसा 90%, right? 90% of days he makes money, 10% of days he loses money. For you it would be like 70-30 कि 70% आप lose करते, 30 में बनाते, but जब आप बनाते तो आप ज़्यादा बनाते हो, right? तो generally बस यही होता है कि वहाँ पे phases आते हैं, like couple of months, quarters, even 6 months where you are negative, net red, and then 3 days, 3 दिन आपका सारा P&L बना के देता है, like next 3 days. So I have like most of my friends who run buying strategies are like this only. कि 6 महीना 5 महीना they will lose money and then 3 दिन में सारा P&L वापस आ जाएगा, like one big random day up move where they make like 500-600 points. So it is a like if you find a good strategy buying में, the
the game becomes running it. Even if you're losing, you keep running it. No, So that you is size it in यार such a मैं way ना that आई वाज सिटिंग विद सम ऑफ माय फ्रेंड्स yesterday और वो ना एक गेम खेल रहे थे एविएटर इफ यू नो अबाउट दैट प्रफुल यू नो अबाउट एविएटर इट्स अ गैम्बलिंग no. गेम अच्छा सो क्या है कि वो एक सॉफ्टवेयर है उसमें ना वो प्लेन उसका है तो 1x से शुरू होता है यू बेट ऑन 1x एंड इट्स द वो फिर वो प्राइस बढ़ना शुरू हो जाता है सो 1.5x 2x 3x 4x 10x I saw yesterday going till 150x so basically if you put money like 100 रुपए लगाया है तो 150 इंटू 100 कितना हुआ जो भी 15,000 100 का 15,000 150x so but the thing is the catch is कि it can crash anytime that price तो 1x का 1.5 2x हुआ तो वो 2.2 पे क्रैश हुआ then you don't get anything you lose everything so it's kind of like option buying जहाँ पे जब वो भाव भाग रहा है तो you can't you know let the profit run मतलब एक साइकोलॉजी कहती है ना कि भाई अब इतना हो गया है 5x हो गया है बस निकल लो you can't run it till you know 15x 20x 30x because अगर वो क्रैश कर गया then whatever notional profit you have it will go away see, so I was I don't think there is anything wrong with waiting for 15-20x. आप जितना कॉन्वेक्सिटी के लिए वेट करोगे उतना आपका रिटर्न्स क्लस्टर्ड बनेंगे मतलब आप 15 के लिए वेट करोगे तो देयर विल बी लाइक let's say 1000 trades में there will be 50 instances where the markets will go to 5x, there will be 10 instances where the markets will go to 10x, and there will be only 5 instances where the markets will go to 20x, and there will be 2 instances where the markets will go to 100x. बट उसमें क्या है ना बहुत सारे हैं जहाँ लाइक 90% will crash also ना 95% you will not be able to hit your target तो the thing that comes out to be a path this like कि वो किस path में move कर रहा है, it can go to 100 and close back to 0, right? yeah So you don't know कि किस path पे move करेगा. So usually since you don't know कि किस path पे move करेगा, you usually want to let it be and let the system run. Otherwise you are kinking like आप उस strategy में kink डाल रहे हो हाथ से उंगल से यार ये मेरे को ये feel हो रहा है. Now you suddenly become like a gut वाला feeling. It can work in your favor as well, right? It can work out of your favor as well. But then फिर वही है कि now you are playing with luck, like hard luck कि what you are feeling about it. So I feel like it's better to, or if you, or let's say I just like a proper suggestion if you want to do it, do it in such a way that your net premium collected premium bought remains at certain value. So let's say अगर आपने 20,000 रुपए का ऑप्शन बाय किया था वो 20,000 का 70,000 हो गया है तो 70,000 में से आप 20,000 निकाल दो, ठीक है, तो 50,000 रह गया, 50 का एक हो गया तो एक में से 20,000 निकाल दो. So you are always booking some but not booking the whole thing and letting the run, because that will if you are like uncomfortable holding large PNLs, so you are at least booking parts of it not letting the trade become bigger than it is. यार किसी का है I trade ORB but my trade takes 1 to 2 hours to complete I buy naked IDM options do you think I should try structures नहीं, that is the trade. You buy naked. देखो आप जितना स्ट्रक्चर्स बनाओगे ना लाइक द मोर स्ट्रक्चर्स यू ट्रेड लाइक द मोर hedging that you do it takes away from your profit potential as simple as that. कुछ नहीं है भाई, ताई पैसा लेके जाएगी. जितना स्ट्रक्चर बनाओगे उतना ताई को पैसा दोगे. कोशिश करो कि ना बनाओ, ताई तो वैसे भी पैसा लेके जाएगी. basically just you know you have to enhance your market trading skills ठीक है ना strategies तो basic होती हैं but you need to know what the market is saying to you. स्ट्रैडल बेचा है बट Praful, does max paid concept work if used in all 8 expiries? और क्या है कौन सा मैक्स पेन Does हाँ max paid concept? नो आई थिंक जो देखो जो भी जो कॉन्सेप्ट है ना वो तभी वर्क करता है जब वेरी फ्यू पीपल नो अबाउट दैट एंड वहां पे क्राउडिंग होती है तो बेसिकली उसका ऑपोजिट होता है. फॉर एग्जांपल जब मैक्स पेन लाइक 2020 2019 के आसपास होता था people used to buy options more and people didn't have more knowledge of the short wall or short gamma kind of trading. So इसलिए मतलब ऑप्शन बायर्स को जहां पे तकलीफ होती है मैक्सिमम वहां पे मार्केट जाके एक्सपायर करता था. अब क्या हो रहा है मैक्सिमम फ्लोज जो मार्केट में आ रहा है दैट इज मोस्टली फ्रॉम शॉर्ट साइड इटसेल्फ. बेसिकली लाइक ज्यादातर लोग आके ऑप्शंस बेच रहे हैं तो ऑब्वियसली बात यह है कि लाइक हो सकता है कि मैक्स पेन पे आके मार्केट एक्सपायर हो जाए बट वो एक्सपायर होने से पहले ना जितना मतलब जो स्ट्रैडल प्रीमियम प्राइस कर रहा है पूरा उसको पूरा स्पेक्ट्रम में घूमेगा मार्केट. ऑप्शन राइटर्स को तकलीफ देगा, उनको हेज करने के लिए मजबूर करेगा, उसके बाद आके वो एक्सपायर करेगा. सो आई एम नॉट अ बिग प्रोपोनेंट ऑफ मैक्स पेन एटलीस्ट इन द करंट मार्केट्स. मतलब मैं तो OI का ही ज्यादा नहीं हूँ. OI इन अ लिक्विड मार्केट्स मेक्स नो सेंस.
I'm like, it would not be only me. Like, if you talk to any large professional, even prop, I like, haven't seen OIs since like 4 or 5 years. मैं try ही नहीं it, करता. it, it makes no sense. Illiquid markets where illiquid stock But है, there are, I mean, there are people, there is so much content on OIA और लोग बहुत follow करते हैं उसको. So I easy है mean, ना, easy to sell है. कि look easy at to the sell है, but हाँ, I mean, it's easy to sell, but people still, you know, I don't know, religiously follow. And see, for me, if something stops working, even, you know, मतलब अगर OI कुछ बता रहा है और वो market उसको behave नहीं कर रहा है, then there is no point following it. 1% तो प्रफुल्ल ही है OI का at अरे places. प्रफुल्ल तो को फोन प्रफुल्ल पे करके बता पूछ दे लिया करो. प्रफुल्ल को फोन करके पूछ लिया करो बस. ना ना इट डजंट मेक सेंस ना बिकॉज मेरा भी ओआई है लेट्स से मैं इतना बड़ा ओआई भी बना रहा हूँ तो 5 मिनट में अगर मार्केट मूव करता है तो मैं वहां से निकल के कहीं और भागूंगा ना तो इट्स हाँ. इट्स अ सेम नेचर स्पेशली लाइक फास्ट मूविंग फास्ट ट्रेड्स पे तो जो छोटा टाइम फ्रेम पे जो ट्रेड्स चलता है लाइक ओआई डजंट मेक एनी सेंस एंड ऑल्सो OI इस डिलेड आता है OI का डेटा, तो प्रफुल्ल निकल के वापस घुस चुका होगा. तो उसका एग्जिट में आप एंट्री करोगे, उसके एंट्री पे आप एग्जिट करोगे. and think about this okay like all this max pain and all this open interest ये ऐसा नहीं कि like it's very objective kind of an interpretation सब सब्जेक्टिव है मतलब अगर मैं बोलूंगा 25,000 पे मैक्सिमम ओआई बिल्ड हुआ है तो इफ यू लुक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एन ऑप्शन सेलर तो लोग बोलेंगे कि भाई 25,000 पे बहुत ज्यादा ऑप्शन राइटर्स कॉल बेचे हैं तो इसलिए मार्केट 25,000 को क्रॉस नहीं करेगा But let's say, what if the big people position themselves by buying some out of the money options because they know something that we don't? वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई एक्सपायरी के पहले 25,000 को मार्केट तोड़ेगा तो ओपन इंटरेस्ट वहां पे भी बिल्डअप हो सकता है अगर कोई बंदा आके तो इट डिपेंड्स ऑन लाइक व्हाई अभी देखो लाइक लास्ट 3 साल से जो भी मतलब ट्रेडिंग रिलेटेड कंटेंट आया है यूट्यूब पे तो इट इज ऑल बायस्ड फ्रॉम द लेंस ऑफ एन ऑप्शन राइटर अगर ओपन इंटरेस्ट एक स्ट्राइक पे ज्यादा हो रहा है तो उनका कहना यह कि भाई ऑप्शन राइटिंग सिर्फ बड़े इंस्टीट्यूशंस करते हैं तो दे नो मच बेटर देन यू नो लाइक द नॉर्मल लेमैन नॉर्मल से वो बड़े इंस्टीट्यूशंस को ज्यादा पता है तो दैट इज वाई अगर एक स्ट्राइक पे ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है इसका मतलब ये है कि वहां पे ऑप्शन जो बेचे है वी ट्राई टू फॉलो देम बट अभी दैट इज नॉट द केस राइट अभी बंदा The thing is, how do you trust that open interest figure, right? How do you ना trust forget कि about भाई let's say even if that figure is trustable मैं भी बताता हूँ कि let's say 24,200 पे मार्केट खड़ा है तो I feel that I look at the open interest and let's say that data is properly trustable 24,500 पे कॉल पे maximum open interest है now tell me do you think that 24,500 will be a very good resistance or do you feel that oh expiry के पहले 24,500 को मार्केट ब्रेक करेगा I actually तो don't see the market like that. ओपन इंटरेस्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इफ यू आर ट्रेडिंग लाइक दीज काइंड ऑफ थिंग्स ऑर्डर फ्लो. यू हैव टू चेक कि वो ऑर्डर जो डला है वो किस साइड से डला है, बाय साइड से डला है. बट इंडेक्स ऑप्शंस आर सो लिक्विड दैट इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू फाइंड आउट बिकॉज I mean, so many trades, you are unfathomable amount of trades go through per second. लगता है कि हाँ मतलब ज्यादा ट्रेड बहुत अमाउंट ऑफ ट्रेड होता है लेकिन एक सेकंड में lakhs of trade क्रॉस कर जाते हैं within a second and you would not And also क्या है ना like see the thing is let's say you cannot actually predict what a person's position is or delta is. Let's say मेरे पास एक डेल्टा न्यूट्रल पोजीशन ऑलरेडी है and market is going against me like कॉल के तरफ मतलब ब्रीच हो रहा है. Now इस पोजीशन को मैं मैनेज करने के लिए ना मैं 10 डिफरेंट तरीके से मैं इसको मैनेज कर सकता हूँ या मैं जाके मैं फ्यूचर खरीद सकता हूँ या मैं उस जो कॉल स्पाइक हो रहा है उसको कट कर सकता हूँ या मैं पुट्स की तरफ एडिशनल क्वांटिटी ऐड कर सकता हूँ. So just by looking at what is happening at a particular strike or in a particular period of time in a silo will give like very half knowledge, especially like जो लोग आते हैं ना FII DII का जो इंफॉर्मेशन लेके आते हैं तो FII ने इतने बेचे इतने खरीदे भाई तुम लोग साइलो में देख रहे सब चीज को. I used to think this only कि भाई बहुत जो OI है वो फज हो जाता है with all these synthetic strategies जो arbitrage strategies होती है. So I mean you can't again it's our perception लोग करते हैं लोग follow करते हैं and they think they are profitable because of that. So we can't really judge their interpretation. But for me it's a lagging indicator and a lot of subjectivity to it. तो मैं उसको उस हिसाब से फॉलो नहीं करता. In my opinion like open interest होने दो ऑर्डर फ्लो होने दो जो भी हो it's all
a way to actually tell a story to yourself so that you can stick to that particular story and trade based on that narrative. एक आपको ट्रेड करने के लिए एक नैरेटिव चाहिए होता है कि क्या है क्या नहीं. अभी फॉर एग्जांपल लेट्स से लाइक वॉर चल रहा है, ठीक है, एवरीबडी इज कमिंग अप विद देयर ओन नैरेटिव. ओ अगर ये पीस टॉक्स हो जाता है तो ऐसे बिहेव करेगा, ये ऐसे. तो इन अ वे वी आर ऑल बायस्ड एंड वी ट्राई टू गेट प्रूफ फॉर दैट बायस एंड बिल्ड अ नैरेटिव सो दैट वी कैन स्टिक टू दैट नैरेटिव. बेसिकली हमको एक एंकर पॉइंट चाहिए ट्रेड करने के लिए. एंड अगर सेम चीज को आप कंटिन्यूअसली करोगे एंड इन द एंड आपका रिस्क रिवॉर्ड सही बैठता है, like if your risk reward is all right, then you'd end up making money. That's all. So I'll like I have very strong opinion on this. Usually very strong opinion on trading, right? Till new information changes it. नहीं चलता. मैक्स पेन OI डेटा नहीं चलता अगर आप फास्ट ट्रेड कर रहे हो, इंडेक्स पे ट्रेड कर रहे हो, डेटा डिले आता है. आप ट्रेड कर रहे हो एक्सपायरी 3 सेकंड 2 सेकंड 3 मिनट 2 मिनट डिले डेटा पे आप अपना जजमेंट बना रहे हो, उससे पहले मूव होता है, आपको बाद में दिखता है, राइट? इसीलिए मैं ऑप्शन गैमैक्स ये गेक्स और ये सब भी यूज़ नहीं करता. उसको मैं यूज़ करता हूँ बट जनरली और डिफरेंट रीजंस, वो भी OI से ही बनता है, ठीक है. दिस ऑर्डर फ्लो मेक सेंस बिकॉज आपको वो पता चलता है कि एक्चुअल फोर्स्ड बाइंग थी या फोर्स्ड सेलिंग थी ऑर्डर फ्लो के थ्रू, ठीक है. बट अब वो फास्ट ट्रेड में मैंने कभी गौर नहीं किया. पीपल आर वेयर हु डू इट ऑर्डर फ्लो. तो ऑर्डर फ्लो प्रोबेबली मेक सेंस rather than OI. Order flow will tell you ki was the buyer more active or the seller more active here, right? Which boosts the price and how like intensity of the order will be. If you are talking about slower trades, जैसे stocks में बात कर रहे हो, इन सब चीजों में बात कर रहे हो, it makes a lot of sense. Stocks and all में OI काफी matter करता है because it generally tells you activity or specifically if that OI comes together. अगर कोई बड़ा OI इकट्ठा आता है, it comes together. I used to trade. I had a strategy back in 2019, 2020. It used to work really well, right? मेरा premise ये था कि यार इंडिया में तो बहुत इनसाइडर ट्रेडिंग होती होगी, या CA जैसे अगर मैं कोई कंपनी वाला हूँ, उसका CA हूँ या CA का क्लर्क हूँ या क्लर्क हूँ, सब पता होता है सबको क्या कब ये आने वाली है, वो आने वाली है, राइट? तो मैंने कहा जिसको भी पता होगा वो तो लीक करता ही होगा. हर्षद मेहता टाइम, राइट? कि भाई फोन करो, पहचान होनी चाहिए बस हर जगह पे, हर कंपनी में, राइट? So I used to do that, and then I used to look at I had a Excel sheet Python में created where I used to look at changes in OI. कि अगर किसी स्टॉक पे बहुत ड्रास्टिक चेंज हुआ है OI पे at a particular strike at a one instance, like within एक घंटे में 30% of the OI add हुआ है उस स्टॉक पे, मैं उसको ट्रीट करता था इनसाइडर इन्फॉर्मेशन. इट माइट बी, इट माइट नॉट बी, राइट? तो I used to treat like that. It used to work really well. For a lot of time, I even found ITM पे like deep in the money options पे massive OI बढ़ते हुए. I was like, क्या बात है, deep in the money कोई क्यों buy या sell करेगा, right? Like तो इतना वो है. And it used to work really well for me. Then back in 2021, 2022, I started watching all people on Twitter come and flaunt कि देखो मैंने 20% of OI बनाया है SBI पे, मैंने 20%. I know exactly who you're talking about. And I was like shit, मैं इनको I don't know this. These are not insiders, मैं ये trade नहीं करेगा. Because my premise got like whoa, because I might get caught if like I was like fuck, I'm treating these like I'm treating the information like as an insider, but there are people who take 20% OI of a large stock. उसमें क्या होगा, अगर आप किसी स्टॉक का 20% का OI लेते हो किसी भी उसका, तो अगर वो मूव करता है आपको एग्जिट में बहुत तकलीफ होगी, मतलब आपको बहुत पैसा देना पड़ेगा एग्जिट में. So I mean yeah, तो generally I abstained doing it because it could be मेरा premise था कि a lot of insiders happen, but वो premise काफी हद तक falsify हो गया कि single handed लोग भी हैं जो 15-20% OI ले लेते हैं. And they like even like अगर कोई जैसे अगर if I take a 15% का OI in any stock, I will not come and tell you on Twitter or anything कि मेरे पास 15-20% का OI है, क्योंकि I mean I can get played around, right? to stock पे अगर किसी का 15-20% का हो, जैसे GME, like GME लेकिन ये सब सेम कमोडिटीज में कैसी होता है? कमोडिटीज यार इंडियन मार्केट कमोडिटीज नहीं गवर्न करती. मतलब कमोडिटीज इंडिया के जितनी भी कमोडिटीज है मेजरली नैट गैस और क्रूड इज गवर्न बाय US. इट इज ट्रेडेड ऑन US का सिबोई का जो भी व्हाटएवर, इट इज मिमिक होता है यहाँ पे. तो लुकिंग एट कमोडिटीज का वॉल OI, बिकॉज
at the end the price has to mimic price volatility, everything has to mimic the price over there. So if somebody comes and pushes a large order here or builds a skew over here, and if it's not there, तो कोई मतलब नहीं है. यहाँ का size comparatively to US का size कुछ भी नहीं है, like not even like 0.1%. So mimic करता है. Then all these nat gas, crude and all mimics settlement over there. So looking at data at India and then trading commodities is not a great idea. स्पेसिफिकली ऑप्शंस का डेटा, बिकॉज फ्यूचर्स का डेटा तो आप फिर भी देख के कर सकते हो बिकॉज सेम होता है, जनरली बहुत ज्यादा मूव नहीं करता है. ऑप्शंस का डेटा कुड मूव, सो यू कैन प्रोबेबली ट्रेड आर्बिट्राज काइंड ऑफ थिंग. कि अगर लेट्स से इंडिया में 10,000 का क्रूड का कॉल ऑप्शन काफी मूव किया, बट यूएस में सेम डेल्टा का ऑप्शन काफी मूव नहीं किया, देन यू कैन बेसिकली पुश इट बैक टू द यूएस वाला प्राइसेस, राइट. बट वो भी ज्यादा नहीं होता है. लाइक यू विल नॉट सी इट हैपन वेरी, इट ओनली हैपेंस अराउंड सर्किट. क्योंकि इंडिया में 3% के सर्किट बना रहे हैं, 6 पे 6 3 3 3 3 करके, राइट. So it only happens around circuit and otherwise नहीं होता. So I mean yeah, but छोटे stocks में काफी होता है. Like तो all like very small stocks FNO उनमें होता है. Yeah, Kaushik, you know Kaushik, right, Nikhil? He's asking what's view on crude directional from volatility POV. Yeah. I think you must have posted this on Twitter. हाँ, तो क्रूड में ना बहुत ड्रास्टिक स्क्यू था. स्क्यू का मतलब है कॉल्स बहुत ड्रास्टिकली महंगे थे फॉर ऑब्वियस रीजंस, क्योंकि कॉल साइड में लोग 200 का चला जाएगा क्रूड, $200 मतलब बात कर रहे थे. 150 जाएगा एक दिन में, 2 दिन में चला जाएगा, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा. तो काफी हद तक ऊपर की तरफ तो सीलिंग नहीं थी, नीचे की तरफ सीलिंग थी कि अगर सब कुछ ठीक हो गया तो बैक टू मीन प्राइस जो 6,000 का था, 6,000 रुपए का, वहीं तक जाएगा. उससे नीचे जाने के चांसेस बहुत कम है, राइट. मीन से नीचे क्यों जाएगा, ऑब्वियस रीजन है. तो ऊपर का वो था. अब क्या है, बिकॉज ऑल दिस सीज फायर तो हो गया है, अब लड़ तो रहे नहीं है ये लोग, अब इट्स जस्ट टैक्टिकल नेगोशिएशंस दिस एंड दैट. तो कोई ऊपर स्क्यू नहीं है. लाइक अब वो है कि फंस गए, बॉटल लाइन में फंस गए. सो देयर इज नो अपसाइड स्क्यू. सो द मार्केट इज नॉट प्रेडिक्टिंग दैट इट विल नाउ मूव टू 150 180 समथिंग. तो कोई भी डायरेक्शनल बेट व्हिच आई थिंक कौशिक इज लुकिंग फॉर, कि कोई डायरेक्शनल बेट ऑप्शंस देख के स्क्यू देख के बनता है क्या, नहीं बनता. इट इज फ्लैट. अगर ऑप्शन चेन देखोगे, स्क्यू देखोगे क्रूड का, तो वो फ्लैट हो गया है एट द मनी. कल का मैं बता रहा हूँ, आज का नहीं देखा मैंने. कल 87 पे ट्रेड कर रहा था आईवी क्रूड की, सम 2000 रुपए ऊपर का 92 पे ट्रेड कर रहा था, 2000 नीचे का 92 पे ट्रेड कर रहा था. सो देयर इज नो आई मीन वन साइडेड हायर रिस्क देन द अदर साइडेड. तो it can start again any time ना, कभी भी फिर से शुरू हो सकता है, फिर से गर्मी आ सकती है. या बट चांसेस, मार्केट इज प्राइसिंग के चांसेस कम है. मार्केट इज प्राइसिंग कि अगर कुछ होगा भी तो इट कैन नॉट गो वर्स फ्रॉम हेयर और द क्रूड का सप्लाई एरिया से. कि क्रूड की सप्लाई तो बंद है, अब बंद से ऊपर क्या बंद हो. अभी मेरा एक ये है, ठीक है, बिकॉज विथ ऑल द बेसिकली अभी इंफॉर्मेशन इज नॉट एन एज, ठीक है. नाउ एवरीबडी गेट्स अ सिमिलर काइंड ऑफ एन एनालिसिस. तुम्हारे पास भी सेम एनालिसिस है, बिकॉज it is all the same thing that has happened over like last few decades or so. So at this point I want to be more of a contrarian than going into the consensus of what the market is pricing in. So it's my feeling currently, because abhi aap dekhoge to agar market mein kuch consensus aa raha hai to most probably it is just to fuck everyone. Yeah. Few weeks back I read a very good Substack article. Substack एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आर्टिकल्स लिखते हैं. I read a very good article where it talks about volatility in general and deciding price based on that. कि volatility से आप price easily कैसे decide करते हो. Since we are Kaushik asked that question, I was like, generally क्या होता है, usually the bottoms are placed, bottoms या tops जो whatever is placed जब tail price in हो जाता है. पहले क्या, जैसे अगर let's take this example of war, right? Market moved drastically down, right? It moved down. IV went from 13 to 26, right? The moment the IV stops increasing, the momentum of IV stops increasing, that is the moment you basically buy. You as basically कहने का मतलब है कि दो प्राइजेस होते हैं. प्राइस पे दो चीज का प्राइस जुड़ता है, एक तो इवेंट का, एक टेल रिस्क का, कि यार रिस्क बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा हो सकता है. लाइक पीपल वर टॉकिंग कि 20,000 चला जाएगा, 18,000 चला जाएगा, राइट? When it
gaps like नीचे touch करके when it makes a first up move, right? That is the point where IV drops. If the IV drops, तो वो जो टेल वाला कंपोनेंट है ना, जो टेल का प्राइसिंग जो पहले लोग 18,000 समथिंग का प्राइस कर रहे थे, वो काफी हद तक इनवैलिडेट हो जाता है कि यार वो वाला तो हो गया है। अब वो टेल का प्राइसिंग से इवेंट नहीं कभी भी इंप्रूव नहीं करता है। वी सॉ दैट इन कोविड एज वेल। कोविड में भी लॉकडाउन शुरू हुआ, वो दिन बॉटम था, जो बॉटम फर्स्ट डे था वो लॉकडाउन शुरू था, तो वर्स्ट डे पे मार्केट बॉटम करता है, क्योंकि वो टेल का प्राइस होता है। जो टेल होता है ना कि इवेंट लोग को पता नहीं होता, हाहाकार मची होती है। तो जनरली अगर आपको टॉप्स या बॉटम ऐसे काइंड ऑफ इवेंट में वेयर पीपल आर पैनिकिंग अ लॉट पता करना है, तो इट्स अ गुड थिंग टू लुक एट वॉल्टिलिटी का। आईवी देखो, प्राइस में रिवर्सल मत देखो, आईवी का मोमेंटम, लाइक अगर नीचे गिर रहा है आईवी तो उसका बेसिकली निखिल, जैसे जब बाजार तेज होता है तो पुट्स क्यू ऑल बढ़ेगा ना एक तरीके से, तो वो तुम्हें बता रहा है कि भाई तुम्हारा बॉटम हो गया, लग गया है। स्क्यू से तो आई मीन आई डोंट नो अबाउट स्क्यू वाला उस टाइप से, बट अगर लेट्स से मार्केट नीचे जा रहा है, आईवीज बढ़ रहे हैं, राइट, ठीक है, एक ऐसा टाइम आएगा जहां मार्केट फिर भी नीचे जाता रहेगा बट अब आईवीज नहीं बढ़ेंगी। दैट इज द मोमेंट यू फील लाइक कि द बॉटम इज समवेयर अराउंड। Nikhil, what I am saying is कि you are saying the overall IVs. I am comparing, एक तो IVs बढ़ना गिरना होता है, एक होता है कौन सी IVs बढ़ रही है और कॉल की बढ़ रही है कि पुट की बढ़ रही है। So comparing those two. हाँ, मतलब इफ यू आर टॉकिंग अबाउट स्क्यू, आई नो व्हाट आप किस उससे बात कर, आप एक्सपायरीज की उससे बात कर रहे हो। नहीं, एक्सपायरीज पे नहीं, नॉर्मल लाइक 5DT 4, जैसे अभी है, अभी बाजार तेज हो रहा है तो हमारी पुट्स क्यों बढ़ रही है, कल ऐसा नहीं था। इंडिया में ना स्क्यू का ना एक बड़ा वो है, रीजन है बनने का, सिंपल सा है कि आपको स्प्रेड मार्जिन मिलता है और कोई तरीका नहीं है, राइट, टू क्रिएट। सो लेट्स से अगर मैं मार्केट ऊपर जा रहा है, राइट, और मैंने एक स्टैडल बेचा है या स्ट्रैंगल बेचा है, राइट, देयर आर कपल ऑफ वेज आई कैन हेज इट। आई कैन ईदर कट माय लॉसेस ऑन द कॉल साइड एंड मूव इट आउट, right? If I cut my losses on the call side, what am I doing? I am buying my call options. I am buying my call options. जब भी मैं बाय करता है एक स्ट्राइक को, या मेजॉरिटी ऑफ इंडिया बाय कर रही है, उसका आईवी बढ़ेगा, राइट। जनरली क्या होता है, नीचे वाला जो स्क्यू दिखता है ना आपको, जो नीचे पुट में ऊपर जा रहा है मार्केट, नीचे पुट पे स्क्यू दिखता है, आदमी क्लोज कर रहे थे अपने पोजीशंस ताकि मूव इट क्लोजर ना हो। एग्जैक्टली, तो इसलिए क्योंकि वो दूर वाला बाय कर रहे होते हैं, तो वो थोड़ा प्राइस को मूव कर देते हैं। इट इज एन एज, टू बी ऑनेस्ट, इट इज एन एज, बट इट इज नॉट दैट बिग एन एज कि आप उस पे अपना घर चला लो विदाउट अ लार्ज कैपिटल। सो लेट्स से एक रॉ एग्जांपल, yes, most of these Q trades now they are pretty much capital intensive. आपको मतलब कैपिटल इंटेंसिव, नो हो सकता है कि साल का 10% 12% बनेगा मैक्सिमम। बट प्रफुल्ल, जैसे वो योगेश भाई वाली वीडियो की थी हमने जिसमें बटरफ्लाई स्प्रेड्स वो कर रहे थे, तो they were saying ना कि वो because of that margin benefit they can actually trade those cues also very well. So again, but those are bit aggressive bets. वही है ना, बट इवन दो स्क्यू ट्रेड्स, राइट, लाइक दे आर कॉन्वेक्स काइंड ऑफ ट्रेड्स। आप अगर आप रेशियो बनाओगे, या मैं एक्सप्लेन करता हूं, लाइक ब्लू ट्रेड एक बार, राइट, कि लेट्स से 24,000 का कल मार्केट था, ये 24,000 का मार्केट था, एंड यू सॉ दैट मार्केट अचानक से ऊपर जाने लगा। आई एम जस्ट गिविंग कल का एग्जांपल नहीं दे रहा, रॉ एग्जांपल बना रहा हूं। मार्केट ड्रास्टिकली ऊपर जाने लगा, इट मेड लाइक 100 पॉइंट्स मूव इन 5 मिनट्स एंड देन इट केप्ट गोइंग अप। एक बहुत बड़ा पुट स्क्यू जनरेट हो गया, राइट, उसके कारण जो सारंग बात कर रहा है कि जनरली ऊपर जाता है, नीचे पुट स्क्यू जनरेट हो जाता है। वो जो पुट स्क्यू जनरेट होता है वो जनरली ओटीएम्स में होता है, तो अगर जनरेट होगा तो कहाँ जनरेट होगा? 23,800 पे, 23,900 पे, 23,700 पे। क्यों? क्योंकि लोग जो 23,800 900 पे बैठे थे जो सेल करके, वो उसको काट रहे होंगे फोर्सफुली, बाय बाय बाय, क्योंकि उनको अब क्या है, कॉल साइड में लॉस हो रहा है, राइट। दो ही चीजें कर सकते हो, या तो कॉल्स को मूव आउट कर सकते हैं या अपने पुट्स को रोल इन कर सकते हैं कि अब 24,000 का पुट बेचेंगे भाई अब, क्योंकि 23,000 में तो कुछ बचा नहीं है, तो 24,000। तो जब वो बाय कर रहे होते हैं तो वो प्राइस को हल्का सा डाइवर्ट कर देते हैं, राइट। सो दैट इज द ओनली ट्रेड। यूजुअली लेट्स से उस 23,800 का प्राइस मान के चलो, अगर ऑप्शंस में बात करते हैं तो 4 रुपए होना चाहिए था उस आईवी स्क्यू, जस्ट बिकॉज पीपल आर रोलिंग, क्लोजिंग इट इन रोलिंग, वो उसका प्राइस 4 रुपए 50 पैसा होता है। तो दैट इज लाइक 40-50 पैसे का एज है ओवर द प्राइस व्हिच यूज्ड टू बी। हो सकता है उसका फेयर प्राइस 3 रुपए होना चाहिए, तो 1.5 रुपए का एज है, बट
मैं जनरली बता रहा हूँ कि 50 पैसे का वहाँ पे एक एज, 50-60 पैसे का वहाँ नहीं पे बट दैट edge- इज अ वेरी स्मॉल, और वो क्या होगा कि वो बढ़ता जाएगा, सो यू हैव टू मे बी कैरी वो, जैसे प्रफुल्ल कह रहे हैं ना कि इट्स अ वेरी कैपिटल इंटेंसिव प्लस बहुत स्लो स्लो डेटा मिलता है उसमें। हाँ, So, मतलब अगर आप एक दो लाइक अगर आप 2-3 रुपए के लिए बनाने की कोशिश कर रहे हैं वहाँ पे वो, तो यू विल हैव टू सेल अ लार्ज साइजेबल कैपिटल, लाइक yeah. 10x पूरा लेवरेज आपको बेचना पड़ेगा। अगर आप उसपे पूरा 10x लेवरेज बेचोगे तो कितना 20 अच्छा पॉइंट बन अच्छा, ऐसा जो है थर्ड फेब को नहीं था। थर्ड फेब को जो मार्केट गैप अप खुली थी अराउंड 1200 1300 एक्सपायरी डे पे, तब पुट्स क्यों था ही नहीं, तब इट वाज ओनली कॉल साइड जहाँ पे सारा फियर था। सो मार्केट वाज टेलिंग यू बेसिकली कि इससे ऊपर बाजार नहीं जाने वाला। ना नहीं 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 नहीं, वहां पे क्या होता है ना कि लाइक व्हेन दैट सडन काइंड ऑफ अ मूव हैपेंस, राइट? तो लेट्स से लाइक जो लोग मान लो कि कुछ कॉल बेचे हैं एंड देन कुछ पुट्स को भी बेच के गए हैं, तो देन सडनली एक 700 पॉइंट का अपमूव आ जाता है ना। ऑब्वियस की बात है कि सीटीएम्स एंड एटीएम्स पे प्रीमियम्स पिघल जाएगी। नाउ इट इज नॉट इन द इंसेंटिव ऑफ दोस ट्रेडर्स टू एक्चुअली रोल द पुट्स नाउ। वहां पे वो लोग सिर्फ डैमेज कंट्रोल करने के लिए कॉल से ही Damage निकलना control. पड़ता है, या सिर्फ कॉल से ही निकलना पड़ता है। अब आके वो लेट्स से मार्केट्स वाज एट 25,000, सडनली 26,300 पे खुल गया, तो नाउ पीपल विल नॉट कम एंड ब्रो लाइक आई विल सेल 26,300 का पुट्स, दे वोंट डू दैट। दे विल बी लाइक भाई टेल इवेंट हो गया, मैं फंस गया हूं कि लाइक आई जस्ट एग्जिट माय कॉल्स एंड आई सैल्वेज। या अगर इंट्राडे में अगर मुंह आता रहता है ना, तो देन पीपल विल ट्राई टू फायर फाइट इट। लाइक 100 पॉइंट मुंह आया, पुट्स को रोल किए ऊपर, और 100 पॉइंट मुंह आया और पुट्स को रोल किए, या थोड़ा साइज ऐड किए पुट्स में, मेड इट लाइक सम सॉर्ट ऑफ अ सिंथेटिक फॉर्म ऑफ अ रेशियो और बेसिकली इट समथिंग। वाज मार्केट प्लेस, उनका जो पैनिक था वो दिख रहा था। हाँ एग्जैक्ट। बट इफ यू हैव स्पेयर कैपिटल, अगर आपके पास कैपिटल बचा हुआ है, ट्रेडिंग दैट स्क्यूड is decent. Like if you have spare capital, you can trade. It's a good trade. It's not a bad trade. बस मैनेज करो उसको, लाइक डोंट ट्रेड लाइक अ कि 1-0, मतलब 100% सर्टेनिटी ट्रेड नहीं हुआ, 100% ट्रेड नहीं है, बहुत रिवर्सल्स देखते हैं। See, most of the discretionary trading, right? Because like now I've been trading discretionary for 6 years and I'm continue to like refine my process. The day a trader understands that most of the discretionary trading is analog and not, digital, कि हमारे पास ना 0 और 1 का स्कोप ही नहीं है। We never take a trade with 0 or 1 kind of an outcome. We always want that trade to develop, and depending upon which path it takes, we try to either add the risk or take the risk away from the table. So this is what is actually sustaining me, because मैं देखता हूँ कि लाइक मेरा जो डायरेक्शनल बायस है और इवन वॉल बायस है, वो दिन में 3 से 4 बार गलत होता है। ओनली वे आई कैन मैनेज इज बाय बीइंग एनालॉग। लेट्स मूव ऑन की दिस गाय इज आस्किंग दिस क्वेश्चन मल्टीपल टाइम्स। तुम दोनों को क्वेश्चंस आए हैं, हाउ डिड यू मैनेज यस्टरडे मार्केट एंड ऑप्शन प्रीमियम इन निफ्टी, और हाँ प्लीज वही पर्सन वही गाइड वही पूछ रहा था। टेक अवे। अच्छा वही रहा था, या सो योर टेक प्रफुल। कल के लिए ऐसा था कि लाइक ऑफ कोर्स लाइक मैं अगर लाइव ट्रेडिंग, मेरा जो लाइव डेली वीडियोस आता है ना, वो अगर जो लोग कंसिस्टेंटली देखते हैं, तो वहां पे मैं लास्ट 2 एक्सपायरी से मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि भाई एक एक्सपायरी आएगी जहां पे लाइक रियलाइज्ड मूव्स जो है वो इम्प्लाइड से बहुत ज्यादा आने वाले हैं। कंटिन्यूसली अगर आप देखते हो तो 3 आउट ऑफ या 4 आउट ऑफ 8 एक्सपायरीज दे हैव बीन ट्रेंडिंग एक्सपायरीज। एंड जब भी ट्रेंडिंग एक्सपायरी होती है तो लोग पैसे बना लेते हैं। तो देयर वाज दिस काइंड ऑफ एन एक्सपायरी दैट वाज ड्यू, वेयर द मार्केट्स काइंड ऑफ ओवर एक्सटेंड ऑन द वन साइड विथ ऑलमोस्ट लाइक ट्वाइस द स्ट्रैडल प्रीमियम, एंड देन मीन रिवर्ट विद द सेम काइंड ऑफ अ मूव। जनरली 100 रुपीज का स्ट्रैडल प्राइस कर रहा था कल, एंड 200 रुपीज पहले ऊपर मूव किया एंड देन 250 पॉइंट्स नीचे मूव किया। So this was kind of an expected thing, and also given the fact that it was a monthly expiry, we were expecting that. But of course, मैंने भी मतलब ऐसा नहीं कि मैं कंप्लीटली 0 और 1 पे मैं ट्रेड करता हूँ। ऐसा नहीं कि मतलब मुझे लगता है कि वो यहाँ पे स्पाइक आएगा तो मैं 0 पोजीशन पे बैठ के वेट करूंगा। नो, like I'll be trading with 10% size, and then I'll size up when that spike will be an opportunity for me. So we do like that. So throughout the day, 95% of the time my mark to market was in red, and even at 3 o'clock I was down 0.1 0.05% के आसपास red था, and 3 o'clock पे मैं फंस गया and I had to close in red. अच्छा तो प्रफुल, टेल मी समथिंग दैट you made around, you were saying 2.5-3%, तो and you only trade expiries, तो what is an ideal expiry for you जब पैसा बनता है, बढ़िया पैसा बनता है? at this point, anything above 0.5 I would consider it a decent expiry. But what निखिल is हंस the रहा है, market निखिल देख what के is the हंस रहा है market साला। like on those days? Is it like just what is the market like on those days? Like बस बाजार पड़ा हुआ है, टिके मिल रहा है, ऐसा होता है या कुछ और एज भी होता है?
Not really. Like it depends on. See, the thing is, every day, like I plan for a particular path. कि मार्केट इस रेजिस्टेंस पे वापस आएगा या इस सपोर्ट पे वापस आएगा एंड यहाँ पे वॉल्स ऐसे बिहेव करना चाहिए. तो अगर मेरा एक्सपेक्टेड पाथ एंड मार्केट जो पाथ लेता है वो एग्जैक्ट कॉन्ग्रुएंट हो जाता है ना, तो माई मार्क टू मार्केट विल बी इन अ स्मूथ अप ट्रेंड थ्रू आउट द डे. Okay. कभी वो नीचे आता ही नहीं, बिकॉज इवन ड्यूरिंग द स्पाइक ऑल्सो, लेट्स से इफ आई एम एंटिसिपेटिंग दैट स्पाइक एंड आई एम साइजिंग डाउन, तो वहां पे भी उस स्पाइक पे भी मेरा जो डिप्स है, एमटीएम डिप्स है, वो आता नहीं. एज आई सेड, हर रोज मैं ट्रेड करने के लिए मैं अपने आप को एक स्टोरी बोलता हूँ, एक नैरेटिव बोलता हूँ कि मार्केट ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है. तो रियलिटी में मार्केट जितना पास है मेरा जो नैरेटिव के लिए, उतना मेरा मार्क टू मार्केट स्मूथ रहेगा. एंड ऑल्सो it also depends on, okay, let's say like there is a resistance and you got out of a spiking call much before the resistance is breached and then that resistance broke out. Ends up happening, you get to short the same calls at a higher price if you get out at the right place. Now imagine like you got out just before the resistance and वो breakout fail होके वापस आ जाता है, then you will be shorting the same calls at a cheaper price again. Yeah, exactly. Yeah. So there are 100 different paths and तुम्हारा 100 different चीजें मतलब तुम्हारे दिमाग में चलता रहता है एंड द मार्केट्स कैन गो इन 100 डिफरेंट वेज. नाउ जहां पे मतलब वो थोड़ा बहुत कॉन्ग्रुएंसी मिल जाता है, तो फॉर मी लाइक 0.6-0.7% विल बी अ गुड डे. अगर 1% ऐसा हो कभी जाता है आता तो है, ऐसा कभी आता है कि यू सी के यार ये एंट्री तो भाई अब उठा लो पैसे, बस जो है अभी मौका है, जितना कमाना है कमा लो. ऐसा कभी दिखता है बाजार इतना क्लियरली? नो, लाइक अगर बाजार लेट्स से इफ इट इज प्राइसिंग स्लाइटली हायर आईवीज एंड वॉल्स अगर बढ़ रहा है, तो पहले लाइक there was a time, there was a phase where I used to treat all these IV spikes as an opportunity to add size or come जैसे closer. yesterday in that down move, the IB spike ना एकदम से आई थिंक 70 से 90 के आसपास गए. हाँ चला गया था. Did you find वहां it पे कि भाई I didn't add my risk. I didn't add my risk and actually like took my risk off the table and I'm like, bro, like today is not the day to fight. Like I देखो 10 o'clock के आसपास जब मार्केट 200 पॉइंट्स मूव कर लिया था ना एंड वहां से नीचे आना शुरू हो गया, वहीं पे मैं डिसाइड किया कि भाई आज सिर्फ ग्रीन पे क्लोज करना है, कितना ग्रीन आई डोंट केयर. Okay. Basically, you had this notion in early morning only कि भाई आज जो है, आज बाजार वो दिख नहीं रहा जो usually होता है. And I might be right or I might be wrong because like there was an expiry where थोड़ा ज्यादा ही पैसा बना सकता था, but I made like 0.2, 0.3 less because of my fear. It's like this, okay? मतलब आप डिसाइड किए हो इस बॉल को आप डिफेंड करना है, सिर्फ ड्राइव ही करना है, और आपको जूसी फुल टॉस भी मिलेगा ना, आप ऊपर उठा के नहीं मार सकते बिकॉज आप ऑलरेडी प्री मेडिटेटेड हो. यू आर ऑलरेडी प्री मेडिटेटेड एंड यू हैव डिसाइडेड कि भाई इस बॉल को मैं डिफेंड करूंगा या ड्राइव ही मारूंगा, मैं उठा के लॉफ्ट नहीं करूंगा. तो अगर आपको जूसी फुल टॉस भी मिलेगा तो आप मार नहीं सकते बिकॉज दैट इज ऑल्सो योर ओन इंटरनल बायस. तो अगेन एज आई एम सेइंग, मार्केट का जो पाथ है और आपका जो एक्सपेक्टेड पाथ है या एक्सपेक्टेड नैरेटिव है, जब वो ठीक बैठता है तो लाइक देन अगेन सी देयर इज ऑलवेज अ प्लेस वेयर यू गो लाइक टेक दैट रिस्क हेड ऑन कि भाई हर स्पाइक होते हुए आईवीज पे मैं और जाके क्वांटिटी शॉर्ट करूंगा. मैं एमटीएम स्विंग्स एंड वेरिएंस को एक्सेप्ट करने के लिए मैं तैयार हूं. लेट्स से if a person can take a variance of plus or minus 1%, bro, every IV spike on an expiry day is an opportunity for you to either come up, increase your leverage or increase your size. Be my guest, take that leverage, I mean take that variance, you'll get paid. मैं बता रहा हूँ ना कि अगर दिन का मान लो कि 0.5% का आप वेरिएंस लेके चलते हो एंड विथ लॉट ऑफ नुआंसेस एंड ऑल दैट, यू एंड अप मेकिंग 2.5% पर मंथ. अगर आप दिन का 1% वेरिएंस लेके चलते हो तो you'll make 3%. If you may take 2% variance, you'll make 5%. Someone Yes, is saying, man, I feel dumb listening to you guys. Yeah. It's not about that, yaar. वो it's just that कि we have more time in the markets than probably you. बस उतना ही है, उतना ही है. Put in some more time in the markets, productive and iterative. I mean iterative as in you try to improve yourself every other day. Do not be like घोड़े की नाल. So घोड़े की नाल रहोगे तो 20 साल में भी वहीं रहोगे. So you every time you be like, oh, this went wrong. Let me figure out. Go to internet. तो ChatGPT है. हमारे टाइम पे नहीं होता था. I used to go to Sarang. Sarang used to probably go to somewhere. पता नहीं कहाँ से पता करते थे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, right? I used to go and ask so many people about how it was going on. So you can now to ChatGPT is a better friend than ChatGPT can tell you, a seasoned trader, you know how things work. तो Can teach you most very well. yeah most of the basic stuff like to chat जाओ push chat like if I said something right. Even if Nikhil, if I tell ChatGPT कि यार मुझे बाजार ये लग रहा है, I see it this way, then it can easily understand what you are trying to say. Yeah, I mean also
आई मीन एज एन अंडरस्टैंडिंग कि यार तो यू कैन गो, जैसे ये यूट्यूब का वीडियो वंस इट गेट्स लाइव, यू कैन गो टू जेमिनाई, नीचे जेमिनाई का बटन आता है यूट्यूब पे, यू कैन क्लिक ऑन इट एंड आस्क हिम कि यार एट दिस पॉइंट निखिल सेड दिस और सारंग सेड दिस, कैन यू एक्सप्लेन दिस इन लाइक डिटेल्स, एंड देन आस्क इट फॉर एग्जांपल्स और गिव योर एग्जांपल्स एंड आस्क इट कि यार वो तो इट इज हेल्पफुल, यू जस्ट नीड टू वर्क लाइक लगे रहो, हो जाएगा within you. Like हमको बहुत टाइम लगा because we didn't had much help, you guys have so much help. So हमें जहाँ 10 साल लगे हैं, you probably you can get it in like couple of months or even like not if months, like probably a year. But again वही है ना कि see वही तो बात होती है ना कि if everyone becomes so smart then you know in a zero sum game like trading तो कैसे मार्केट कैसे इवॉल्व हो. अरे it is a zero sum game and everybody सारे cannot smart. it is a zero sum game and everybody cannot be this smart. That is why the money is there. Like नहीं, but the James- thing is पता है क्या, there are people who are actually who think they are very smart. Okay, I was reading this post. I'll tell you something, Reading Sarang this bhai. post where निखिल को ट्रोल कर रहा था कोई, and I won't take the name, but so they think they are very smart. 3-4 साल हुए हाँ. मार्केट में, and but मार्केट उनको बहुत जोर से फिर like you know like they it's a part of learning curve. ऐसी बात नहीं है, like but for a seasoned trader they should think, you know, I personally think that I'm not smart. I just need market to, you know, validate my opinions. That's it. हाँ, मतलब I तो think that there is so much to learn. So like Yeah. the place I want to be, I probably at 1%, right? I'm like talking about Jane Street, कल report आया था, they made like $40 billion, right? उसका per employee $8 million $8 million. per employee $8 million. I'm like, what bong is like you have to be really really smart to So I make- was reading this post जिसमें वो कहते हैं कि why can't people replicate Jane Street strategies? I mean, is it the They tech superiority या फिर कुछ is it the money power? What is it? everything, talent, money, power, data, infrastructure, किसी चीज में compete नहीं कर सकते. You can't, like no damn body can come and compete with them right now straight away. Like it will take them years. If let's say somebody comes and be like, oh मैं $100 billion, $150 billion ठोकेगा and I will compete with Jeans, it will take you 3 years to reach where they are and then probably compete. आज के time पे कोई compete नहीं कर सकता. That is very known fact. That is why they have cornered all markets. Not just, they didn't just corner the Indian market, they cornered all market around the globe. $40 billion पे उन्होंने. So I'm just saying, my saying is, if you are working hard and you are working at the smart way in a place जहाँ पे 3 to 4% probability of doing better than 97%, you are at the right place. You just need to be at the top. Same exam जैसे IIT जैसा है कि तुमको IIT बनना है तो टॉप 1% पे आना होता है, राइट? अगर नहीं आ रहे हैं तो तुम नहीं करोगे. सेम ट्रेडिंग में भी ऐसा ही है, मेहनत करे जाओ, हो जाएगा. और ईजियर है, अब बहुत ईजी है भाई पहले से. यू जस्ट हैव टू. See, मतलब again, I don't know. I don't find it that easy for a beginner because, see, you can say it because you know you have seen stuff, but for people, they don't know what is right, what is wrong. जैसे आप OI की बात कर रहे हैं, people would invest 2 to 3 years just on you know understanding कि OI को कैसे interpret करना है. So 2-3 साल बाद शायद उनको पता चलेगा यार OI शायद है ही नहीं, it's something else. But वो जो टाइम लगा सीखने के लिए, वो टाइम तो गया ना. चैट जीपीटी में जाओ, वो भी मना कर देगा. पूछने जरूरत ही नहीं है, मैं कहता रहा हूँ चैट There are so many people I who have are this- selling वो भी बोल देगा क्या कर रहे हो. No, I have this hot take on what you call like what if everybody becomes smart in a zero sum game. The question is not about being smart or being dumb. Sometimes market behaves in such a dumb way that the smart guys will be perplexed ki, oh, how can this happen? It's always about you being in the few of the winners. For example, मैं बताता हूँ कि let's say everybody starts understanding, bro, taking delta risk is not a great way to trade. We have to always delta hedge our position. Let's say 80% लोग purely delta hedging कर रहे हैं, हर delta move पे अपना position को hedge कर रहे हैं, तो market क्या करेगा? Market एक लंबा सा trending day दे देगा. तो people who are running these dumb strategies like भाई 25% SL लगा वो, straddle चला लो. So those guys will be making money. If you are noticing over the last 2 or 3 months, there is a particular Twitter guy like who was struggling for the last 2 or 3 years. Suddenly his trading returns have kind of turned around. Why? Yeah. Because market ज्यादातर trend कर रहे हैं. Now everybody is like भाई markets तो expiry day पे choppy होता है, resistance पे वापस आ जाता है, ये आता है वो आता है. They are putting in so much of brain,
But a simple thing like भाई 30% stop loss लगा लो straddle पे, वो चल रहा है. Now, once the people flock onto that particular thing, that stops working and delta hedging will work. It's always the market working cycle. So I So don't believe that. basically market जो चलता है, basically it's always going against the crowd. That's all. Right now, a person who goes against the crowd is a smart in that particular phase. I'll give you another example from the real life. ठीक है, जो अपने स्कूल टाइम पे जो बंदा वेलापंती करता था, जो बंदा अनाप शनाप बातें करता था, जो लोग सबका मजाक उड़ाता था, तो उनको बोला जाता था कि भाई लूजर है, लास्ट बेंचर है. नाउ जो बंदा नर्ड है, जो बंदा अच्छा पढ़ाई किया है, like he's kind of taken a backseat and those guys are doing well on Instagram or YouTube. They have become stand-up comics. वो अनाप शनाप का चीजें कर रहे हैं and they're getting paid for it. Now, let's say there is a whole generation who want to become content creators and again, they'll be called dumb guys after a few years because वहां पे crowding ज्यादा है. कोई भी strategy तब काम करती है जहां पे वहां पे crowd नहीं हो. You're an early mover and you found out something and you're protecting with your life and you're kind of executing, doubling down and using leverage. The moment it becomes public information, crowding will happen and suddenly the things which you thought was dumb will start working and things which you thought that oh मैं smart हूँ, मैं ऐसी चीजें कर रहा हूँ, बहुत logically कर रहा हूँ, that will तो stop ऐसे working. टाइम पे do you just persist with your strategies or do you keep shifting? What is better? What makes better sense to you? So I'll talk about this. मैंने starting में भी बोला था, the only problem with TBS is people try to switch their stop loss based on regime. They don't know. It's very hard to predict a regime, specifically the way they are trying to, right? They be like, अरे अभी एक बंदा है जो 30% पे चला रहा था, वो इतना स्टारडम चल रहा था, वो अपना ट्विटर, इंस्टाग्राम हर जगह PNL पोस्ट कर रहा था, अच्छा चल रहा था एकदम, ठीक है. सडनली अब फेज कम जहाँ पे मार्केट ट्रेंड ज्यादा कर रहा है नाउ, राइट, एंड देन यू गेट चॉप्ड, लाइक ऊपर नीचे दाएं बाएं चॉप्ड करता है 30% पे, तो दोनों तरफ स्टॉप लॉस हिट हो रहा है. अ गाय हु इज कीपिंग 100% स्टॉप लॉस इज मेकिंग मोर मनी. 100% वाला अपना PNL पोस्ट करता है, ये ऐसा चल रहा है. 30% वाला देखता है, अरे यार मेरे तो पैसा बन नहीं रहा, 100% वाला पैसा बना रहा है. नाउ व्हाट ही डज, ही पोस्टेड टू 100%, राइट. जैसे ही 100 करता है, मार्केट वापस चेंज हो जाता है, इट गोस टू बाइक 30% वाले पे या 29% वाले, जो व्हाटएवर परसेंट वाले पे, एंड देन ही लूजेस मनी बिकॉज ही चेंज टू 30. सो दिस द ओनली प्रॉब्लम इज द एज इज देयर. अगर आप 0DT पे ऑप्शन बेचो और उसको डेल्टा हेज करो, पैसा बनता है, ओवर द इयर्स बनता है, जस्ट नॉट हाउ यू थिंक इट इज मेड. अगर आप सोच रहे हो कि कंफर्टेबली एवरी डे थोड़ा 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 बनता रहेगा, मेरे को लॉस नहीं होगा, नहीं बनेगा, राइट. The problem is when you try to be smart and change within the regime कि यार मैं change करूँगा, this will to that way, इधर से उधर. You are like, I had this discussion with Yuan as well in my one where I talked, I knew what he was gonna say. I asked him कि since I know it's a good strategy, I know TBS people might think TBS guys are dumb. They are not dumb. He knew about TBS. He knew about TBS. Yeah, he knows about 9. I have been talking to Yuan since few years now. अच्छा, okay. So So he knows about वहाँ it. भी चलता है same strategies TBS type. Yeah, I mean, so the thing is, it works everywhere. If there is a VRP in the system, अगर it's a market कम move करता है over the year, then what it is pricing तो चलता है. It's simple trade है यार. Straddle बेचो और trend ORB, मतलब it's a mixture of straddle बेचो and ORB. अगर ORB हुआ, then you're closing your thing, right? The problem is people try to curve fit it, क्या 60%, 30%, इस महीना ये अच्छा चल रहा है. Every time I get a call from my friends and they be like, यार वो एक ट्रेडर है बहुत अच्छा पैसा बना रहा है, वो एक ट्रेडर है बहुत अच्छा पैसा बना रहा है. And I know like almost all of them are doing some form or the other of TBS. It's just that ये वो वाला बंदा ऐसा है जिसका कई बार क्या होता है, इसने 70% पे स्टॉप लॉस लगाया, 65% से वापस आ जाता है. 2-3 बार ऐसा हो गया, 65% से वापस आ गया एंड ही इज मेड गुड रिटर्न्स. मेरा क्या था, 60% पे था, मेरा हिट हो गया एंड आई डिड नॉट मेक गुड परसेंट. तो पीपल थिंक यार कुछ तो अल्फा है. देयर इज नो अल्फा. जस्ट स्टिक टू वन थिंग, कीप पुशिंग इट. There will be months, there will be quarters, there will be 6 months, years where you probably would not make money. But if you keep doing it for 5, 6, 10 years, you'll make But money. how do you fix your this thing stop loss? कि भाई how to There's no fixing. come to that figure? There's no fixing. You come to a figure based on how much losses you are willing to take. So basically, अगर let's say आप 200% लगाते हो, right? आप मानो कि दोनों तरफ 200% हिट हो गए, तो मेरे को कितना लॉस होगा, and then take that figure. अगर आप कंफर्टेबल हो 200 लगाओ. अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो, कह रहे मैं 30 ही लगाएगा, मेरे को छोटे छोटे लॉसेस ले लें, तो आप 30 जितना लॉस जितना ज्यादा बढ़ाया उतना ज्यादा रिटर्न नहीं बचेगा. तो यू बी लाइक कि मेरे को इतना रिस्क लेने को तैयार है, उतना बड़ा लगाओ, खत्म बात. जस्ट डू नॉट ट्राई टू रैंडमली जज कि यार इस बार 30 अच्छा चल रहा है. बिकॉज मैं बता रहा हूँ, आप आई टेल यू रैंडम व्हाई दिस हैपेंस. आप चेंज कब करते हो, जब उस स्ट्रैटेजी का बहुत अच्छा टाइम चल रहा होता है, आपको लगता है, कोई बताता है कि यार वो 100 वाला बहुत अच्छा कमा रहा है, ठीक है,
तो मतलब उसने 1-2 महीना अच्छा पैसा कमाया है, Yeah, राइट? जनरली जब आप जॉइन करते हो यू आर ऑलरेडी स्लाइटली लेट, exactly. राइट? लेट इन द रिजीम, वो हो चुका है, तो आप जनरली उस डिक्लाइनिंग पीरियड में घुसते हो, एंड देन जब आप उसमें घुसते हो तो आपकी But स्ट्रैटेजी जो आप but यार में थे ये सबका थॉट प्रोसेस नहीं होगा कि यार अब तो निकल गया, लाइक अब सारे यही सोचते होंगे बिकॉज एवरीवन वी आर सेइंग एवरीवन इज स्मार्ट इनफ टू अंडरस्टैंड द गेम। तो उनको भी पता है कि भाई अगर एक बंदे ने 2 महीने इकट्ठे कमाए हैं तो ही विल नॉट मेक द सेम रिटर्न्स इन द नेक्स्ट कमिंग मंथ्स। यार it's a same thing, like trading is same as trading in market hours is same as boxing, like वही वाली बात है ना कि तुम कितना ही प्रैक्टिस करके चले जाओ, पहला पंच लगता है सब स्मार्टनेस बाहर आ जाती है। मार्केट में पहला स्टॉप लॉस मारता है पूरा, तभी मैं देखता नहीं, मार्केट आज में नहीं देखना भाई, मेरा आईक्यू लेग से 10 है whatever, right? मार्केट आज में मेरा आईक्यू 3 हो जाता है, आई एम लाइक नहीं देखेगा, आई नो आई एम सुपर डम इन मार्केट आज। तो बेस्ट if you are trading, like just like as a friend, if you are trading 0DT and you want to make money over the years, you are fine with variance, you are not managing money or whatever, बट दिस इज नॉट जस्ट अबाउट 0DT राइट, ये सारे डेज के लिए है सिर्फ। बाकी स्ट्रैटेजीज में होता है कि यार बड़ा, बिकॉज नंबर ऑफ ट्रेड्स कम है, राइट? 0DT में हर हफ्ते में 2 आते हैं, बाकी ट्रेड्स अगर पोजिशनल कर रहे हो तो उसमें महीने में 1 या 2 आते हैं, राइट? तो उसमें हो सकता है कि आपका पीरियड ऑफ लूजिंग बहुत बड़ा हो, राइट? 2-3 साल तक पैसे ना बने। जैसे अगर लेट्स से आप सिर्फ लॉन्ग, आप जैसे मेरे फ्रेंड्स यूज्ड टू डू कैश मोमेंटम इन स्मॉल कैप्स एंड ऑल, made crazy money. No trader made that amount of money in 20 से लेके 23 तक. They were making 100% CAGR plus, slightly levered, like थोड़ा सा MTF लेके slightly levered 1.2 1.5 पे 100% रिटर्न रहा था कैश में, राइट? नहीं बना पिछले 3 साल में पैसा, कैसे बनेगा? निफ्टी आप नहीं है, स्मॉल कैप्स वहीं पे है, फ्लैट है, इंडेक्स ही फ्लैट है, तो पैसा कैसे बनेगा? तो नहीं बना पैसा। सो आई मीन, तो जनरली क्या आता है कि वैसे काइंड ऑफ स्ट्रैटेजीज में मेरा होल्डिंग पीरियड इज स्लाइटली लार्जर, देन यू हैव टू पुट ओवर टू इट कि यार मेरे को थोड़ा साइजिंग वाइजिंग कम करना पड़ेगा, रिजीम जज करना पड़ेगा, बिकॉज मेरे नंबर ऑफ ट्रेड्स कम है। 0DT इट कम 100 आते हैं साल में, इट विल फ्लिप बिफोर यू सी इट। तो 0DT तो ठोके जाओ, बेस्ट है, ठोके जाओ, एक बार पकड़ लो, ठोके जाओ अपना, लाइक एज अ TBS ट्रेडर, एज अ समबडी हु ट्रेड्स लाइक 0DT 920 TBS काइंड ऑफ अ थिंग, फुल टाइम नहीं करना चाहिए, सिस्टमैटिकली ठोक दो, चाहे जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, रिटायर हो गए, रिटायरमेंट एंजॉय करो, लेट इट रन, डू नॉट ट्राई टू इंटरफेयर, दैट्स इट। द प्रॉब्लम कम्स व्हेन यू ट्राई टू बनी हॉप बिटवीन व्हाट यू थिंक, or like you can find something really smart, I'm not saying you cannot, but the probability of, you have to ask yourself, like be true to yourself कि मैं कितना, कि क्या probability कि I figure something which is really मतलब alpha, मतलब मैं regime बोले या market moves को मार्केट से पहले जज कर सकता हूँ, कितना probability है। आप गामा स्कैल्पिंग की वीडियो डालने वाले थे, कहाँ है प्रफुल्ल भाई वो वीडियो? डालना यार, डालेंगे हैं? डाल मत गामा स्कैल्पिंग कैसे, लाइक डू यू डू इट, यू तो सेल बोथ साइड्स ना? आई सेल बोथ साइड्स, बट देयर वाज बीच में कैसा रहता है, लाइक मेरा एक ट्रेड रहता है जहां पे मैं थोड़ा बहुत गामा स्कैल्पिंग कर लेता हूँ। ओके, हाँ, प्योरली प्राइस बेस्ड, ऐसा नहीं कि मतलब वो मैं ग्रीक्स यूज करूंगा, ये करूंगा, सिंपल है, लाइक भाई गामा अगर कोई बंदा बड़ा वाला टेक्निकल टर्म्स यूज कर रहा है ना, गामा स्कैल्पिंग ये वो, इसका मतलब सिर्फ ये है कि फैग एंड ऑफ द एक्सपायरी में ऑप्शन को बाय करके पैसे कमा रहा है, बस उतना ही। आप ज्यादा उसको मतलब भाव मत दो कि वो गामा स्कैल्पिंग बोले तो 5 इंडिकेटर लगाएंगे, इसको ये करेंगे वो करेंगे, भाई एक्सपायरी के 2 बजे के बाद ना वो इंडिकेटर जब तक आपको इंडिकेशन दे देता ना, तब तक प्राइस जाके टारगेट हिट करके वापस आपका स्टॉप लॉस भी हिट कर देगा। सो प्राइस बेसिस पे ही करना पड़ेगा। माय स्ट्रेटजी इज आल्सो ओनली गामा स्कैल्पिंग दीस डेज, तो तभी बट इन अ वे यू आर लाइक, आपका जो डाउन साइड है वो थोड़ा लिमिटेड रहता है बिकॉज ऑफ यू नो द काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स दैट यू यूज। या पर ये है कि बेसिकली जो पोजीशंस हैं वो स्टक हो जाती हैं, दैट्स द ओनली डाउनसाइड। Okay, somebody is asking, What is the part हाँ। you would suggest a newbie in the market? Like what things would you ask him to learn? नहीं, मेरे को लगता है कि देखो इट्स अ गेम, तो आपको गेम का सारा रूल्स पहले सीखना चाहिए। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि पहले मतलब मैं आपको एनालॉजी देता हूँ, अगर क्रिकेट को करना है, क्रिकेट को खेलना है आपको, इट्स नॉट इनफ दैट यू वांट टू प्ले क्रिकेट। आपको एक
एक कॉम्प्रिहेंसिव व्यू होना चाहिए कि भाई क्रिकेट में क्या क्या होती है। बेसिकली बैटिंग होती है, बॉलिंग होती है, फील्डिंग होती है, कीपिंग होती है। नाउ इसमें से मैं कौन सा करना चाहता हूँ? ठीक है, बैटिंग करना चाहता हूँ, तो बैटिंग में कि मैं कैसे करूँ? शुड आई बी एन ओपनर, शुड आई बी अ मिड ऑर्डर बैट्समैन, और शुड आई बी अ फिनिशर? अगर ओपनिंग बैट्समैन भी करूंगा तो मैं कैसे करना चाहता हूँ? तो यू हैव टू गो, एक एक चीज को मतलब टेल कर कर करके उसमें घुसना चाहिए डीप। और उसके बाद ये भी है कि यू हैव टू सी पहले तो कि ठीक है, यू वांट टू बिकम एन ओपनर, बट देन यू स्टार्ट सीइंग योर टैलेंट एंड व्हाटएवर, एंड देन यू अंडरस्टैंड कि भाई मैं ओपनिंग नहीं कर सकता, मैं सिक्स डाउन ही ठीक हूँ या फिफ्थ डाउन ही ठीक हूँ। Absolutely. अभी सिंपल है, लाइक इफ आई हैव टू लाइक इस एनालॉजी को वापस मार्केट्स के टर्म्स में अगर बात करना है, तो फर्स्ट आपको सोचना है कि भाई मैं कितना रिस्क झेल सकता हूँ, फर्स्ट थिंग, एंड मैं किस प्रकार का मैं ट्रेड कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अच्छा, लेट्स से आप बहुत पर ज्यादा कंट्रोल, बहुत लोगों को पता भी नहीं होता कि कितना रिस्क वो झेल सकते हैं। दे हाँ थिंक दैट दे कैन डू दैट। वो क्या है, वो ट्रायल एंड एरर से ही होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल किसी दिन आपने उन्होंने 2% लॉस ले लिए, तो हाउ आर दे फीलिंग इंटरनली? आर दे फीलिंग लाइक देयर द स्काई इज ऑन देयर शोल्डर, और आर दे फीलिंग तो 2% कोई नहीं है? सो यू हैव टू काइंड ऑफ कैलिब्रेट योरसेल्फ टू रिस्क फर्स्ट, एंड सेकंड थिंग इज यू हैव टू आस्क योरसेल्फ what comes naturally to you. For example, बहुत सारे different kind of trading है ना, स्कैल्पिंग है, पोजिशनल ट्रेडिंग है, स्टॉक्स पे ट्रेंड फॉलो कर सकते हैं, इंट्राडे में इंडेक्स पे ट्रेंड फॉलो कर सकते हैं, इंट्राडे में स्ट्रैडल ठोक सकते हैं, डेल्टा एडजस्टमेंट्स कर सकते हैं, एक्सपायरी ट्रेडिंग कर सकते हैं, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं। नाउ यू हैव टू आस्क what is it that you can do, and you can see yourself doing it for a longer period of time, which comes like जितना नेचुरली हो सके। इतना ऐसा नहीं कि भाई मतलब मेरे को नेचुरली आ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं पैदाइशी मतलब इस चीज को मैं लेके आया हूँ। इट्स जस्ट दैट आई हैव रिफाइंड समथिंग एंड आई एम ओके डूइंग दिस फॉर अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ टाइम। सो once you finalize that, then you have to get into that strategy and you have to go deep down in. So it's all about क्या बोलते हैं, सेल्फ मास्टरी होने दो या सेल्फ डिस्कवरी होने दो कि आपका रिस्क एपेटाइट कौन सा रेंज में आता है, एंड आपका जो नेचर है। फॉर एग्जाम्पल लाइक आई एम सच अ कंट्रोल फ्रीक कि मेरे को समझ नहीं आता कि भाई मैं पोजिशनल ट्रेड लेके हाउ कैन आई सिट लाइक आराम से व्हेन आई डोंट नो वेयर द मार्केट्स गोना ओपन टुमारो। आई डोंट वांट टू डू दैट। सो ऑब्वियसली लाइक आई स्टार्टेड पोजिशनल ट्रेडिंग, बट मैंने उसको निकाल दिया बिकॉज पोस्ट मार्केट्स आई वाज नॉट माई सेल्फ। मेरा आधा दिमाग मेरा मार्केट में रहता था। बट देर आर सर्टन पीपल हु टेक द पोजीशंस एंड दे फॉरगेट। भाई रिस्क डिफाइंड है, मेरे को पता है कि कहाँ पे ओपन होने वाला है, कहाँ पे क्लोज होगा, तो कितना लॉस होगा, कितना प्रॉफिट होगा। आई एम कंप्लीटली ओके। इफ यू आर दैट काइंड ऑफ अ पर्सन, देन यू कैन ट्रेड पोजिशनल. If you want to have more control, then trade intraday. If you are like very quick, if you are like a gamer, then do scalping. So it's बट more चक्कर about क्या है ना कि पीपल डोंट नो ऑल दिस, दे जस्ट वांट टू स्टार्ट समवेयर, लाइक वेयर शुड दे स्टार्ट फ्रॉम, वेयर लर्निंग द रूल्स ऑफ द गेम। बेसिकली कितने कितने स्टाइल का ट्रेडिंग है, हर ट्रेडिंग का रिवॉर्ड कैसे आता है, हर ट्रेडिंग का इक्विटी कर्व कैसे होता है, हर ट्रेडिंग का ड्रॉडाउन कितना दिन तक रहता है, कितना महीने तक रहता है। फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू बी एन ऑप्शन बायर, यू हैव टू बी इनहेरेंटली ओके टू हैव लेस देन 50% हिट रेट एंड एक्सपेक्ट दैट तुम्हारा जो रिटर्न है क्लस्टर्स में ही आने वाला है ना? इफ यू वांट टू बी एन ऑप्शन सेलर बिकॉज ऑफ हायर कैपिटल, देन यू हैव टू बी ओके विद इट्स ओन प्रोज एंड कॉन्स। तो बेसिकली आपको समझना चाहिए कि भाई अगर मैं टेल एंडर हूं तो मेरे को हर मैच में मेरे को हीरो बनने का मौका नहीं मिलेगा। बट जिस मैच में मैं हीरो बनूंगा तो 2 साल तक लोग उस इनिंग्स को याद रखेंगे बिकॉज मैं मैच को ऐसे क्रूशियल स्टेज में लाके जीताऊंगा मैं। तो एवरीथिंग हैज इट्स प्रोज एंड कॉन्स, लाइक यू हैव टू मेक पीस विथ इट्स ओन प्रोज एंड कॉन्स। अगर किसी का इक्विटी कर ऐसे जाके ऐसे जा रहा है तो वहां पे टेल रिस्क नहीं है। अगर किसी का इक्विटी का सुविधा ऐसे आराम से जा रहा है, बहुत लेवरेज यूज करके टेल्स बेच रहे हैं, तो वहां पे टेल रिस्क ऐसे जाके ऐसे किसी दिन आ सकता है। तो यू हैव टू मेक श्योर हो भाई अगर मैं ये रोल मार्केट में प्ले करूंगा तो इसका मार्केट मुझे ऐसे पैसे देगा, एंड किसी दिन इस प्रकार से मेरे से पैसे ले भी सकता है, और कितना ले सकता है इसका भी एक अंदाजा होना चाहिए। सो फर्स्ट इज define your which risk parameters like that fit you, and then define your competence, and more than competence, understand what you cannot do. More than what you can do, if you keep eliminating what you cannot do, obviously you'll find one or two things which you are okay, and then you have to deep dive into it and then improve yourself so that you become a master in that. TBS से शुरू करो, हाँ, एक्सपायरी डे तो पे TBS से शुरू करो। हाँ, उसको यही That is सुनना है the कि भाई best. मेरे को एक स्ट्रैटेजी बता दे कि क्या स्ट्रैटेजी से I'm शुरू करूं। telling you, if you are a तो टीबीएस starter, से शुरू कर रहे हैं। हाँ, TBS से शुरू करो एक्सपायरी डे पे। टीबीएस को
निखिल एक और- मिनट में समझा, बस एक मिनट में कि व्हाट इज टीबीएस। इट्स नथिंग, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू स्ट्रैटेजीज जहाँ पे एक ऑप्शन बेच रहे होते हो और एट सम पॉइंट आप ऑप्शन बाय भी कर रहे होते हो। वो क्या बाय कर रहे होते हो, जो आपने बेचा है उसका उस लेग को ही बाय कर रहे होते हो, तो वो स्टॉप लॉस में क्रिएट हो जाता है। सो लेट्स से अगर आपके पास 5 लॉट है ट्रेड करने के लिए, राइट, एक लॉट आपने 9-16 को बेचा, दूसरा आपने 10-16 को बेचा, 11-16। लॉट मतलब लाइक नेकेड या लाइक एज इन स्ट्रैडल या फिर सिंगल साइड, ये भी बताना। नो, सो यू आर ट्रेडिंग स्ट्रैडल या स्ट्रैंगल, व्हाटएवर। स्ट्रैडल या स्ट्रैडल या स्ट्रैंगल जो आपको कंफर्टेबल लगे। मोस्ट लोग स्ट्रैंगल करते हैं बिकॉज स्ट्रैडल इज उसमें लोगों का लाइक प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट बहुत हाई होता है स्ट्रैंगल्स में, तो लोग स्ट्रैंगल्स करते हैं बिकॉज उनको दिखाना होता है, राइट, कि मैं रोज पैसा बना रहा हूँ। स्ट्रैडल मेक्स मोर मनी देन स्ट्रैंगल्स, बट स्ट्रैंगल्स हैव हायर प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट, राइट। तो आप कहीं से भी शुरू करो स्ट्रैडल से, स्ट्रैंगल से, एक पर्टिकुलर स्टॉप लॉस पिक कर लो, रैंडमली पिक कर लो, कोई अल्फा नहीं है उसमें, 50 से लेके 100% के बीच में पिक कर लो, कोई भी रैंडम नंबर डाइस थ्रो करो, जो नंबर आएगा वो ले लो, ठीक है, एंड रन करो और उसको सिर्फ देखो, एनालाइज करो एंड फिगर आउट लर्निंग्स फ्रॉम देयर एंड देन स्टार्ट ट्रेडिंग। क्या आगे क्या और कर सकते हैं, एटलीस्ट यू विल हैव अ ट्रेड टू ट्रेड। तो इट्स अ वेरी फेयर सिंपल स्ट्रैटेजी। उसका प्रेमाइस 2 ही है कि आप ऑप्शन बेच रहे हो, मतलब आपको जो थीटा पीएनएल बोलते हैं लोग, या फिर मैं जिसको वीआरपी बोलता हूँ, कि मतलब ऑप्शन जनरली महंगे होते हैं, राइट, तो वो आपको प्रीमियम मिल जाता है, ठीक है। प्लस जिस दिन मार्केट ट्रेंड करता है उस दिन आपका एक स्टॉप लॉस हिट होता है एक साइड का, वो स्टॉप लॉस हिट होता है तो इनहेरेंटली, मतलब इसका क्या कहने का मतलब है कि आपने जो ऑप्शन बेचा था उसको वापस बाय कर लिया, तो आप अपने वहां से लॉस लिमिट कर देते हो। तो ट्रेंड वाले दिन क्या होता है, आपको एक साइड का पूरा पीनल मिल जाता है, दूसरे साइड का एक पर्टिकुलर स्टॉप लॉस पे एग्जिट हो जाता है। तो यू डू नॉट लूज ऑन ट्रेंड। द ओनली डे यू लूज इज जब मार्केट ऊपर और नीचे दोनों तरफ मूव कर जाता है, दैट इज पाथ ऑफ द ट्रेड, तो चलता है। इट इज अ गुड स्ट्रैटेजी। आई एम नॉट अ I like people feel like I diss TBS a lot. I do not diss TBS a lot. I have always told it's a very smart strategy. I used to do it back in 2020, 21, but then I stopped because I thought I figured something better, right? उसमें कोई वो नहीं है। I think the only crux I'll straight away give you कि आप उसको change नहीं करो, लेकिन do not change based on कि अगर आ रहे कोई आदमी आ रहा है आपको बोल रहा है अरे 100% का स्टॉप लॉस बेटर है, 60 का नहीं, या फिर 30% का स्टॉप लॉस बेटर है, या फिर ये बेटर है, या फिर ये वाला फ्लेवर बेटर है, वो वाला फ्लेवर बेटर है। जस्ट बिकॉज यू आर मेकिंग लॉस, डू नॉट ट्राई टू चेंज इट, लेट इट रन, गिव इट टाइम, let it run like not like 3-4, let it run for 4-5 years. उस टाइम पे आप 4-5 कुछ और years. सीखो। हाँ, it will make money. Anybody who has run it for 4-5 years has made money. Let it run. अब बेसिकली एक तरीके से तुमने फैक्ट्री लगा दी है, अब वो जो है स्पीड ने पैसा एडवांस इंश्योरेंस का नहीं है। धंधा है, इंश्योरेंस का हाँ। धंधा है। आप हर थर्सडे आते हो, हर ट्यूसडे आते हो, इंश्योरेंस बेचते हो, चले जाते हो, रिजल्ट आता है उसका, ठीक है, बेचे जा रहे हो। इंश्योरेंस वाला थोड़ी देखता है कि यार इस वाले महीने बहुत सारा इंश्योरेंस की वो आ गई, मेरे को नहीं देखता है। इट्स इंश्योरेंस का धंधा। तभी तो मैं कह रहा हूँ, इन द मीनवाइल गेट योर लर्निंग्स फ्रॉम दीस ट्रेड्स एंड ऑल, ट्राई फिगरिंग आउट न्यू ट्रेड्स, कुछ और करते हैं, स्कैल्पिंग करते हैं, या अगर जो भी सीख रहे हो कोशिश करो कि जीरो DT पे ही सीखो। 93% जो लूजिंग ट्रेडर्स अगर वो सुने हैं, दे विल बी लाइक यार हम हार क्यों गए यार वो ये पैसा चाहिए ना, so simple. selling because basically if everybody starts doing simple like this, right, it will degrade, it will go down Yeah, the drain so much exactly that my the point. pool will Yeah. become zero. अभी भी जीरो नहीं है, you ask me, नहीं अभी भी है। zero नहीं है, exactly नहीं है, अभी नहीं है। Makes But money, see, it the doesn't thing make is, Nikhil, that again some people who were losing जीरो last 2 नहीं years, होगा, they have वो जीरो हो भी नहीं सकता, बिकॉज मैं क्या भी होगा, the returns will not go to zero. It's just the risk adjusted return will keep getting worse and worse. वो मतलब ठीक जो है, but अगर तुम मार्केट will- से पैसा निकाल के जा रहे हो, you are in that 7%, right? चाहे कुछ भी निकाल के जा रहे हो, 1%, 2% साल का कुछ भी। for example, let's say like people who traded long mama, they would have made crazy amount of money in 2024. Yeah, है ना, 2024, they were in that top 7% for that particular year. बट वही चीज मान लो 2023 में 2022 में करते तो गंदा वाला लॉस खाए रहते हैं. नाउ द सेम पीपल विल कीप शफलिंग इन दैट, वो +7%, आई मीन दैट 7% से अंदर बाहर जाते रहते हैं. There will be like 1% of the people who are consistently profitable throughout, Yeah. like for a decade or even more than a decade. वही I was saying कि the edge will not vanish, the edge will get choppier.
उसका ड्यूरेशन वेयर इट मेक लॉसेस विल गेट बिगर एंड बिगर। तो हो सकता है कि पहले क्या जनरली 1 महीना ही लॉस करता था, अब हो सकता है कि 6 महीने के लॉस करे। 6 महीना नॉट मेकिंग मनी रन करना बहुत तकलीफ का काम है, लाइक जनरली नहीं कर Exactly. पाएगा, नहीं कर पाए। and they will quit at the worst possible time, right? So you'll have to figure out why it makes money. If you have like understood why it makes money, तो रन करने में कोई दिक्कत नहीं है। मैं And तो Nikhil, देखो any rule of thumb of for sizing, or do you guys just you size based on कि मेरा मैक्स दिन का इतना लॉस हो जाएगा, दोनों तरफ स्टॉप लॉस लग गया तो, राइट? एंड फिगर लाइक अगर 3 बार लगातार दोनों तरफ स्टॉप लॉस लग गए तो उतना ही साइज करो। आई वुड सजेस्ट लो साइज करो, बिकॉज यू आर अ नूबी, यू डोंट अंडरस्टैंड व्हाई इट वर्क्स, व्हाई, तो लो साइज करो। जब समझ आने लग जाए कि क्यों पैसा बन रहा है, कैसे बन रहा है, कहाँ बन रहा है, कितने लॉसेस हो सकते हैं मेरे इसमें, तो साइज बड़ा कर दे जाओ। दिस इज वन ऑफ द ट्रेड। सो लेट्स से मैं बता रहा हूँ वही क्या था, मैं इंडेक्स लॉन्ग करता हूँ, राइट? निफ्टी लॉन्ग हो, इंडिया लॉन्ग हो, 3 साल से पैसा नहीं बना है। मैंने थोड़ी निफ्टी खरीदना बंद या सिप करना बंद कर दिया क्योंकि 3 साल से पैसा नहीं बना है। नहीं बना है ना 3 साल से पैसा। 3 साल पहले 22-23 हज़ार का मार्केट था, अभी 22-23 हज़ार का मार्केट है, नहीं बना है 1 रुपया। अभी 3 साल तक मैं सिर्फ कैरी कॉस्ट दे जा रहा हूँ, जो भी है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि द स्ट्रैटेजी इज बैड। आई नो व्हाई, बिकॉज आई नो कि जनरली ऑन अ लॉन्गर ड्यूरेशन 5 साल 6 साल होल्ड करेगा तो मार्केट ऊपर ही जाता है। आई हैव दिस अंडरस्टैंडिंग कि निफ्टी डिक्टेट्स द अर्निंग्स ऑफ कंपनीज, और जनरली लोग जाता ही अर्निंग्स ऑफ कंपनी इंक्रीज होती है ओवरऑल 50 करने की अगर अर्निंग्स हो तो जनरली हर सालों साल इंक्रीज होती है। तो मेरे को पता है, इसलिए मैं 3 साल निफ्टी ने रिटर्न नहीं बनाया तब भी होल्ड कर पाता हूँ, राइट? सिमिलर थिंग अगर आपको किसी स्ट्रैटेजी के बारे में समझ आ जाएगा कि ये स्ट्रैटेजी इसलिए काम करती है और यहाँ पे ये रिस्क है, मैं इसलिए पेड हो रहा हूँ। मैं हमेशा बहुत ट्रॉल होता हूँ मैं कई बार इसलिए पूछने के लिए कि व्हाई डू यू गेट पेड, आपको व्हाई इज समबडी पेइंग यू, तुम्हें पैसा क्यों देगा कोई बाजार? आपको पैसा कोई क्यों देगा? तभी उन्होंने फेंका है बट सेंटर यार निखिल, मुझे एक बात बता के, देयर आर ऑलवेज आउटलायर्स इन द मार्केट, ठीक है? I saw someone who made like 100% trading just expiries or Indian market में पिछले साल. So what kind of knowledge would they be having, or ऐसा क्या कर रहे होंगे वो, या बस एक randomness है? सेम मैं कह रहा हूँ, I don't know that person might be really smart. I don't know Or that person might have maybe had just, one more maybe where just taking. no, not faking. I'm not saying that. No. Making 100% is not tough. Like if there are so many people who trade, there will be some guys who will make 100%. There will be a lot of guys. There will be guys who make 100% in a month as well, right? जो जितना रिस्क वो तो लेता है। चलो अलग हो गया, हाँ। तो मैं सिर्फ ये कह रहा है कि there would be chances he might be knowing something, he might not be knowing something. I just look at कि what do I know? I know market, अगर मेरा मार्केट let's say straddle 150 रुपए का है और मूव किया है वो 130 रुपए के हिसाब से, तो मेरे को 20 पॉइंट मिल जाएगा। अगर मार्केट 150 रुपए का वो मूव किया 170 पॉइंट के जितना, तो मेरे को मेरा 20 रुपए जाएगा, राइट? अगर मैं ट्रेंड भी ट्रेड कर रहा हूँ ORB टाइप, लाइक मुझे पता है कि सुबह का जो भी रेंज था उसको ब्रेक करके मार्केट ट्रेंड किया तो मेरे को ORB में पैसा बन जाएगा। अगर मुझे पता है कि सुबह ट्रेंड जिस साइड में ट्रेंड किया था वो रिवर्ट होकर वापस आ गया, मुझे पता है मेरे को ORB में लॉस होने वाला है। लेट्स से कल जैसा, कल का एग्जांपल, पहले ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया तो मैंने कॉल साइड बाय किया इन द मनी कॉल एंड देन इट केम डाउन, तो मेरा सारा कॉल जीरो हो गया, राइट? एंड अगर मैंने फिर एट द एंड उसके नीचे पुट ब्रेकआउट बाय किया तो वापस भी रिवर्स हो गया, तो दोनों तरफ से पैसा गए। तो आई नो दी काइंड ऑफ थिंग्स। हो सकता है ही माइट हैव अ वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स स्ट्रेटजी, राइट? द थिंग इज, will I be able to figure out what he's doing? Most likely not, if it is a very complex strategy. If it's a very simple strategy, it will be combination of these things. So yeah, I don't know. To be honest, I have stopped paying attention to what people are doing Organized. this. Yeah. मतलब बहुत टाइम हो गया, बहुत टाइम से हो गया, मतलब many years I stopped looking at कि कौन क्या कर रहा है. I just look at markets. I now have completely went into places जहाँ पे वही, like I've kept talking about, right? Alpha. There's only certain alpha. You buy the dip, you sell the wall, and you sell the skew. ये certain alpha है, कर लो पैसा बनता है, ठीक है? Buy the dip मतलब मार्केट गिरा चुपचाप उठा लो, ये मत देखो इससे नीचे 10% गया तो क्या हुआ, क्योंकि एट द एंड ऑफ द सम टाइम पैसा बन जाएगा, ठीक है? ऑप्शन बेचे जाओ, ओवर लॉन्गर ड्यूरेशन पैसा बन जाएगा। स्क्यू डेवलप हुआ है बहुत ड्रास्टिकली, उसको बेच दो पैसा बन जाएगा, राइट? The problem is trying to make it more efficient. Doing this, like just in this, will not give you the amount of money and the comfortability of the money that you want.
पैसा बनेगा बट बहुत अनकंफर्टेबल पैसा बनेगा, राइट? नाउ द गेम बिकम्स हाउ टू फिगर आउट टू मेक मोर मनी एंड like more comfortably. So मेरा आई एम मोस्टली वर्किंग ऑन दैट ओनली. नया ट्रेड नहीं मिलता इंडियन, लाइक इट्स वेरी हार्ड. आई डोंट थिंक कि मेरे को पूरा लाइफ टाइम में कोई अल्फा मिलेगा, लाइक एन अल्फा गेम स्ट्रीट टाइप अल्फा. इतना स्मार्ट तो नहीं पाएगा, लाइक इवन विद सोविक्स एट माय डिस्पोजल. Now that the charges are damn high and high margins and the reducing volumes in Oh, Bank man. Nifty, do you think SEBI successfully broke the market, the full? I mean, I have a lot of hot take on it, but not on this But occasion. यार पैसा Not पैसा तो on बन this ही रहा है ना, channel. तो full. पैसा तो बन रहा है Not ना on फिर this. भी. Huh? पैसा तो फिर भी बन ही रहा है. बन रहा है, bro. Like, but again, see, it's again, as you say, it's not the quantum of money. The quantum of money has gone down. ठीक है, your risk taking ability has gone down. देखो, सिंपल चीज है, रिस्क एक आदमी तब ले सकता है when there is higher number of opportunities and there is a higher leverage at his disposal. Like the two pillars of capitalism, leverage and opportunity. तो 2024 में अपॉर्चुनिटी भी ज्यादा थी. लेट्स से लाइक आई एम एन एक्सपायरी डे ट्रेडर, मेरे को हर 5 दिन में हर हफ्ते 5 एक्सपायरीज मिलते थे एंड लेवरेज वाज देयर. सो आई वाज ओके टू टेक हायर रिस्क. रिस्क का पैसा है ब्रो. लाइक एवरीबडी नोस ऑप्शन सेलिंग इज एन इंश्योरेंस गेम. तो जितना रिस्क आप लोगे उतना पैसा आपको मिल जानी चाहिए एट द एंड ऑफ द डे. नॉट on one particular day, not on one particular week, not in one particular month, but over few years आप जितना रिस्क लेते हो उसका प्रोपोर्शनेट पैसा आपको मिल जानी चाहिए. नाउ somebody has a higher risk appetite, he should be allowed to take higher risk appetite. and now सेबी ने क्या किया, लेवरेज को घटा दिए, अपॉर्चुनिटीज को कम कर दिए. तो ऑब्वियसली व्हेन द अपॉर्चुनिटीज आर लेसर तो आपका रिस्क एपेटाइट भी कम हो जाएगा. पैसे बन रहा है. इट्स नॉट लाइक मनी विल नॉट बी मेड, मनी विल बी मेड, बट इट्स जस्ट दैट लेट्स से आपका कुछ वेल्थ जनरेशन का एक गोल है. नाउ इट हैज जस्ट बीन लाइक प्रोलॉन्ग्ड. बात वो है, बात ये नहीं कि भाई मैं सेबी ने ये रूल ला दिया, एसटीटी को 50% बढ़ा दिया तो दाल रोटी नहीं मिलेगी, ऐसे थोड़ी ना होगा. एंड मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स Basically, watching this and most of the basically people watching this, the late entrants of the market, they are suffering. उनको it's always the case. No, it's always the case. Like मान लो कि अगर हम 2020 से हम लोग ट्रेडिंग चालू किया, 2021 से ट्रेडिंग चालू की है, तो we think that we might be late to the party because उसके पहले 10,000 रुपए पे पर लॉट लोग पोजिशनल ऑप्शन बेच के जाते थे. या they made easy money. Like they were like, उस point of time पे तो monthly 10-15% को तो कोई भाव भी नहीं देता था, उतना पैसा मिलता था. But again, if you notice the other side of the coin there, a lot of those people got wiped out in the month of March 2020. उनका जो आदत था कि लाइक पोजिशनल एकदम मस्त लेके जाने के लिए, वो लोग वाइप आउट भी हुए हैं. So तो वही सेम इस साल भी हुआ होगा मार्च में. yeah, I mean that's what I'm saying. See, the thing is, everybody will be making money depending upon their risk appetite. And कभी ऐसे अपॉर्चुनिटी रहता है, कभी ऐसे फेज रहता है where things kind of align with your risk appetite, things align with your trading strategy, and you have to make the most of it. So 2024 में, ठीक है, like just a couple of hours back, like my cousin and I were having the discussion where he was saying that by 2024 में ना you are kind of insufferable because हर रोज आप इतना इंटेंसिटी से ट्रेड करते थे, उसके बाद वीकेंड पे कुछ पॉडकास्ट शूट करने जाते. तो 2024 was like you didn't have any personal life at all. Then I told him, see देखो, like every time markets give you or the universe gives you an opportunity where you have everything at your disposal and you just have to hit that iron. तो उसके बाद आपको क्रूज करने के लिए मौका मिलेगा. उस पॉइंट ऑफ टाइम पे एक्सेलरेट करना बहुत जरूरी है. तो ना अगेन लेट्स से यूएस मार्केट जैसे इंडिया में लाइक लेवरेज होता, ये होता, तो आई एम ओके टू टेक 3%, 4%, 5% रिस्क डे. नो, व्हाट इज टू स्टॉप मी? ठीक है, 20% ड्रॉडाउन ले लेंगे, अगर साल का 150% बनेगा रिटर्न तो ऑल यू नीड इज 2 गुड ईयर्स. एंड उसके बाद ऑटोमेटिकली आपका रिस्क एपेटाइट कम हो जाएगा एंड यू विल बी सच अ गुड प्लेस वेयर भाई आप सिर्फ एफडी रिटर्न्स पे भी आप आराम से एफडी रिटर्न से आपको 2-3 करोड़ साल को आ जाएगा, तो क्या प्रॉब्लम है? Just like Praful is in right now. नहीं भाई, 2-3 करोड़ एफडी से क्या कहाँ आ रहा? What's your view on crypto in Indian market? No guys, like don't do it. Don't do it. lot of compliances, government Don't का do it. कोई Not worth the clear headache. नहीं है, Not stand worth the clear, headache. taxes ज्यादा है, उससे fraud उससे बहुत उससे है, बेटर तो कमोडिटीज में कर लो ना, वो बेटर नहीं है. returns भी अब वो नहीं है जो back in like 2016-17 थे. It's a I don't know, मतलब नहीं करना चाहिए. It's
But I yeah, think I mean, was crypto was a hot this product एक साल पहले. It has suddenly, got down जब से commodities गिरा में है ना, जब से क्योंकि उस इतना टाइम पे volatility आई है. 1,30,40,000 का क्रिप्टो था, बुल मार्केट था वो क्रिप्टो का। अभी 60-70,000 में क्रिप्टो है, बेयर मार्केट है। Yeah. क्रिप्टो में रिटेल लेवल But do you ऑप्शन think निखिल के अगर लेट से निफ्टी 18,000 17,000 पे आई, क्या वो भी वहाँ भी इंडियन मार्केट्स में जैसे या whatever, तो हमारी ऑप्शन मार्केट भी ऐसी हो जाएगी? I don't think No, so. no. सो तो अगर बियर और बुल से क्या फर्क पड़ता है? नहीं फर्क ना पड़ता ना ना सी वहां पे कैसा है ना, वहां पे इकोसिस्टम का रिस्क है, यहाँ पे इकोसिस्टम का रिस्क नहीं है. नहीं, फर्क भी पड़ता मान लो है कि जनरली। इंडियन मार्केट में, लेट्स से इंडियन मार्केट्स में अगर लेवर्ड लॉन्ग्स लिक्विडेट होते हैं, तो वी हैव एस्टैब्लिश्ड सच टाइट रेगुलेशंस एंड रूल्स. वहां पे कोई ब्रोकर लायबल नहीं रहेगा, वहां पे कोई ब्रोकर किसी को ओन नहीं करेगा, एक्सचेंज नीचे नहीं जाएगी. क्रिप्टो में ऐसे है ना, अगर मान लो कि लाइक बड़े तौर पे अगर लेवर्ड लिक्विडेशन हो जाता है, लेवर्ड लॉन्ग्स का लिक्विडेशन हो जाता है, तो देन यू आर नॉट श्योर वेदर द एक्सचेंज इज एबल टू फुलफिल देयर कमिटमेंट्स. तो वहां पे स्केल नहीं है वहां पे, स्पेशली इन द इंडियन मार्केट्स क्रिप्टो में. सो 17 अगर निफ्टी 17-18,000 चले जाता है तो लॉसेस तो होंगे, लाइक कंपैरेटिवली, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्ट्रैटेजीज दैट हैज वर्कड ओवर द ईयर, जो बैक टेस्ट करके लोगों ने ऐसे तैसे करके बनाए हैं, वो सब बुल मार्केट स्ट्रैटेजीज है. कुछ भी कर लो, लाइक व्हाटएवर, लाइक जीरो डेटी एक्सपायरी, पोजिशनल, ओआरबी, सब कुछ कर लो, बीटीएसटी, ये वो सब बुल मार्केट स्ट्रैटेजीज. दे वर्क रियली वेल इन बुल मार्केट. दे डोंट. दैट इज व्हाई लास्ट 2-3 इयर्स हैव बीन टफ फॉर ट्रेडर्स, बिकॉज बुल मार्केट नहीं है, राइट. एंड देन 2020 से लेकर 2023 बहुत अच्छा टाइम चल रहा था, कुछ कर लो पैसा बन रहा था, बिकॉज धीरे धीरे ऊपर जा रहा था मार्केट. सो ऐसा बन रहा था. यूजुअली डाउन पीरियड्स पे पीपल डू नॉट मेक गुड अमाउंट ऑफ मनी. इट्स अ रियली हार्ड टाइम. पूरे वर्ल्ड में ऐसा है. इट्स नॉट बिकॉज स्ट्रक्चरली, बिकॉज मार्केट्स ऑलवेज गो अप, स्ट्रक्चरली सारी स्ट्रैटेजीज थोड़ा सा अपसाइड टिल्टेड होते हैं. अगर तुम ऑप्शन बेच भी रहे हो तो यू आर बेसिकली स्लाइटली बुलिश. अगर तुमने स्ट्रैडल बेचा तो स्लाइटली बुलिश हो, बिकॉज नीचे जाओगे तो आई बढ़ेगा, राइट. नीचे जाओगे तो आई बढ़ेगा, तो आपका लॉस होगा. ऊपर जाओगे तो हो सकता है आई गिर जाए, तो ऊपर जाने के बाद भी प्रॉफिट हो. बस यही है कि हाँ, अगर 17,000 जाएगा तो अगर लेट्स मार्केट धीरे धीरे मार्केट अगले 2 साल भी डिग्रेड होता है, एंड देन वी स्टे अराउंड दिस लेवल ऑफ 20,000, इट विल ओनली गेट टफ. मार्केट्स विल ओनली गेट ईजियर व्हेन इट गोज अप. सिंपल सा ही है कि ऊपर जाएगा तो अच्छा रहेगा, बेकार रहेगा. आई एम वेरी वरीड अबाउट यूएसडी INR. I have a very bad expectations of USD INR for the couple of years. तो मेरे को irrespective निफ्टी कहीं भी जाए, I think net holding capacity में मैं शायद लूज ही करूँगा. That is why I do not want to invest more into Indian markets. अच्छा. Because I have a slight bit discretion on being bullish the USD. So Okay. काफी बढ़ गया है. I'm like, क्या because ये जो लोग हैं similar- अपना सिप करना बंद कर दे लोग? नहीं, I would not know. I am doing it. मैं बढ़ा रहा है उल्टा. Like my brother yesterday was only saying that he's drastically gonna increase it, and I was अच्छा. like, we don't know, because I am trying not to put money. So I don't know, but I am, because I'll give you simple, right? Most of the USD that comes in India comes through IT companies and pharma companies. IT and pharma gets paid in USD, right? IT का हाल बहुत खराब है. IT का हाल 2-3 साल में और बहुत खराब होने वाला है. तुम अगर अभी निफ्टी आईटी देखो तो निफ्टी आईटी मार्च के बॉटम पे है. निफ्टी बढ़ गया 10%, निफ्टी आईटी नहीं बढ़ा है. निफ्टी आईटी इज द ओनली थिंग दैट इज ड्रैगिंग एवरीथिंग. इट इज डाउन 30% down from the all-time highs. 30, आई थिंक जा मोर हुआ शायद. 30, 35, 30 to 33 के बीच में. एंड दिस व्हेन यूएसडी आईएनआर बढ़ा है. जब यूएसडी आईएनआर 20% बढ़ा है, मतलब जनरली यूएसडी आईएनआर बढ़ता है तो आईटी शुड गो अप बिकॉज दे गेट पेड इन यूएसडी, राइट. तो Yeah. मतलब इनहेरेंटली यूएसडी भी बढ़ा और बेसिकली वो जो पूरा एआई का जो चल रहा है उससे पीपल आर प्राइसिंग इट लाइक दैट. एआई का पीएस जो तो जनरली क्या है, अब प्रॉब्लम क्या है कि अगर लेट से आईटी वाली कंपनीज मोस्टली मैन पावर पे हायर करती है, यार मेरे यहाँ इतना मैन पावर लगेगा, सो दैट इज हाउ आई कॉस्ट माई कॉस्टिंग टू अ सर्विस सीकर, लेट्स से एनीवन हु सीक्स अ सर्विस, राइट. अब प्रॉब्लम ये है कि अगर अब मेरा मैन पावर की जगह टोकन लगने हैं, मैन पावर तो लगने नहीं है, एआई टोकन्स लगने हैं, राइट. एआई टोकन्स का कोई पीपीपी नहीं है. यूएस के लिए भी उतना ही है, मेरे लिए भी उतना ही है, वियतनाम के लिए भी उतना है, चाइना के लिए भी उतना ही. तो इंडिया का कोई एज नहीं है.
India doesn't have its own AI base, right? कि कोई AI platform है नहीं इंडिया का, like everybody. इंडिया तो बस प्रॉब्लम ये है कि a lot of the IT work might not go. हो सकता है Infosys को काम ना जाए. Renegotiations of the deal, just let's say some deal was $10 million. That उसका जब नया रीनेगोशिएशन का टाइम आएगा, कोई $10 million नहीं देगा. वो बोलेगा भाई तेरे को $3 million दूंगा, वरना मैं किसी और के पास जा रहा है. राइट, इवन दो क्लाइम नहीं गया, मेरा रेवेन्यू ड्रॉप हो गया 70% से, बिकॉज चीपर हो गया. राइट, तो आईटी की बहुत बुरी हालत है. आईटी आई डोंट नो, टू बी ऑनेस्ट. वही है, आईटी मरा बहुत है. सो इट्स नॉट लाइक कि आईटी इज स्टिल ओवर प्राइस्ड. आई डोंट नो इफ आईटी इज ओवर प्राइस्ड, क्योंकि आईटी हैज गॉन डाउन अ लॉट. आई थिंक आईटी इज क्वाइट बीटन. But does that mean it will not get beaten even more? I don't know. But I am very bullish USD INR. I am like within I expect an 7-8% या probably 10% yearly growth in USD INR. हर साल 9-10 रुपए बढ़ जाए तो कोई भरोसा नहीं है. जिस दिन 100 रुपए टच होगा ना INR, हो जाएगा इस साल तक हो जाएगा. I'm expecting most likely हो जाएगा. that will create a lot of ruckus. Maybe that is probably that is मैं कैसे expect कर रहा हूँ ना, like when that happens, right, there will be some kind of an announcement, just like how the corporate tax rate cut happened. So there will be some sort of a relief where थोड़ा lenient loss आने वाले हैं, and I'm expecting an upside crash. So the thing is, USD के केस में कुछ ज़्यादा कंट्रोल कर नहीं सकते. They can only sell their reserve to actually push USD down. But कितना बेच देंगे? Till they do not fiscal deficit को improve नहीं करते. At least they're going to make it investor friendly, right? FI friendly और बना लेंगे. हाँ, they could do that. They could do that. But generally क्या है? Like if I am a new gen investor in, let's say, Amsterdam, right, and I am looking to invest, I am not looking to invest into this traditional behemoth. I am looking into invest into robotics and AI, right? को चाहिए पैसा, तो तभी तो कोरिया में जा रहा है पैसा, ताइवान में जा रहा है, when US बॉन्ड बढ़ रहा है, right? कोई कह रहा है someone made crazy money in crypto and you guys are saying the opposite. No, someone would definitely make crazy money. I'm just saying it's on a net sell you should not do it because हो सकता है कि आप पैसा बना लो, but compliances, taxes, ये वो में कुछ ना बचे, and then सब चला जाए. So I'm थोड़ा सा no. I'm not saying anybody like कि करो नहीं करो. I'm just, you are asking my opinion, so I'm just saying कि for me it's a big no. I'm not touching crypto in India. Saran bhai, why aren't you trading today? The market is moving strongly in one direction today. So यार मेरा क्या है कि I only trade in Nifty and positional. So आज क्या है, आज first day है of the new expiry. तो मैं आराम से मेरी positions धीरे धीरे बनती हैं. एंड अभी क्योंकि सेंसेक्स की एक्सपायरी है कल, तो लाइक ऑल माई पोजीशंस विल बी डिप्लॉयड बाय टुमारो, लाइक आफ्टर 12 बजे के आसपास. सो आई टेक इट इजी एंड धीरे धीरे लाइक कुछ स्पाइक्स आते हैं, कुछ एंट्रीज अच्छी मिलती हैं, देन आई मेक माई पोजीशंस. तो ऐसा नहीं है कि मार्केट ठीक है, जो भी आज ट्रेंडिंग चल रही है, बट माई there's a set system to how I operate और कैसे मेरी पोजीशंस डिप्लॉय होती हैं. सो बट ये धीरे धीरे पोजीशंस, बट आई थिंक मतलब कल मैक्स 12 बजे तक मेरी पोजीशंस पूरी डिप्लॉय होएगी फॉर द वीक, एंड देन आई विल मैनेज अकॉर्डिंगली. चलो, I think it was a productive session, guys. Yeah. Good questions all around, good discussion all around today. I think we should aim at replicating similar kind of a session where productive and valuable discussions happen. मेरे को थोड़ा मजा आया, like we discussed. बहुत strategies बताइए आज, सब मेरे वर्ड्स पे मत लेना, चला मत देना, लॉस हुआ तो मेरे को मत मारना. सारंग ने वेरीफाई करा है. अरे कुछ नहीं कर रहा है, मैं He's the more experienced one with me. मैं नेक्स्ट से सीख पे आता हूँ बस. Anyway, चलो guys, have a good expiry tomorrow. We'll see you again in the next 915 show. Till then, take care. Bye bye. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.